Welcome to the Chemistry Live channel. So today we are talk about the whole antimalarial drug. So let's begin with this one. That is the topic which we discussed in today's lecture. It is introduction of antimalarial drug, responsible species, type of malaria, drug discovery, life cycle of Plasmodium, how to control malaria, classification of malaria, structure activity relationship of many antimalarial drugs, as well as mode of action of many antimalarial drugs, and followed by the synthesis of some antimalarial drugs. So without wasting more time, we quick jump to our introduction section. In an introduction, a chemotherapeutic agent which was used to prevent and treatment of malaria is known as antimalarials. Malaria is still in the top list of most terrifying protozoal disease which affect human health until the COVID-19. So it is most terrifying disease. So इसका मतलब ये है कि ये सबसे ज़्यादा terrifying disease है कोविड के आने से पहले. However, the disease arise mainly tropically countries like Venezuela, Colombia and etc. Here all the countries are mentioned. डिसीज वहाँ पे अराइज ट्रॉपिकल कंट्रीज पे बहुत ज़्यादा अराइज होती है जो यहाँ पे मेंशन की हुई है यहाँ तक कि यहाँ से यहाँ तक. सो यू कैन टेक अ लुक ऑफ द कंट्रीज. द फिगर्स ऑफ द स्प्रेड ऑफ मलेरिया वाज पेनफुल. इट इज़ वेरी पेनफुल बिकॉज द अकॉर्डिंग टू WHO report 2018 estimated 2 to 8 million cases of malaria worldwide compared with 251 million in 2010 to 231 million in 2017. And between 2015 to 2018 or 2015 to 2018, there is 31 countries where malaria is still endemic, reduce the cases, incidence significantly, and we are on the track of the reduce the incidence by 40% or more than by. Without accelerated change, the global technical strategy of malaria 2016-2030 milestone for the morbidity in 2025 and 2030 will be not achieved. This is all about in one report which is published by World Health Organization, and it is completely clear data. Plasmodium falciparum is most prevalent malarial parasite in the WHO African region, and globally 53% of PYVX burden is in the WHO Southeastern Asia, with majority being in India. It's 47%. So what in India people what suffer from the malaria, it's due to the PYVX and as well as in Americas. So now the next topic is responsible species. Which responsible species are responsible for that malaria, or which parasites are responsible for. So see, आज तक हमने जो भी पढ़ा ना वो ये था भी इंट्रोडक्शन थोड़ा सा पढ़ा हमने. उसमें ये कि मलेरिया कैसे होता है, मलेरिया के क्या क्या सिम्टम्स है, क्या क्या साइड इफेक्ट्स है और क्या क्या हो रहा है एक्चुअली मलेरिया से. बट हम जो देखेंगे अब कि मलेरिया प्लाज्मोडियम जो है वो कौन कौन से पैरासाइट से होता है. सो हम ये देखेंगे कि भाई चलो अब बात करते हैं. द रिस्पॉन्सिबल जीनियस ऑफ मलेरिया इज प्लाज्मोडियम विच ऑफ द क्लास ऑफ प्रोटोजोआ फेमस एज फेरोजोन. देयर आर 4 स्पीशीज वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मलेरिया इन द ह्यूमन एज फॉलो. पहली जो थी वो है प्लाज्मोडियम मलेरी, देन वाइवैक्स, देन फाल्सिफेरम, देन ओवेल. सो अगर बात करें मलेरी की तो वो क्वार्टन मलेरिया से, बात करें वाइवैक्स की तो टर्शियन मलेरिया से, बात करें फाल्सिफेरम तो सब टर्शियन और मैलिगन मलेरिया से, एंड अगर हम बात करते हैं ओवेल की तो वो होता है टर्शियन मलेरिया. अब हम बात जो करेंगे हमारे नेक्स्ट और टाइप ऑफ मलेरिया. टाइप ऑफ मलेरिया क्या चीज़ है वो हम देखते हैं जरा एक बार, उसको जरा अच्छे से समझ लेते हैं. दिस टाइप ऑफ मलेरिया क्या है. तो द इन्फेक्शन ऑफ मलेरिया आर नोन अकॉर्डिंग टू द स्पीसीज ऑफ पैरासाइट इन्वॉल्व. ओके, वो हमें पता था, हमने देखा पैरासाइट इन्वॉल्व कौन कौन से हैं. सो द इन्फेक्शन जो है वो किस बेस पे है, द पैरासाइट इन्वॉल्व. सो लेट्स स्टार्ट. प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम इज इन्वॉल्व. So what happened? The infection with Plasmodium falciparum has 1 or 3 weeks of incubation period. Okay, see, कोई भी इन्फेक्शन होता है किसी भी पैरासाइट से तो उसका एक पर्टिकुलर इंक्यूबेशन पीरियड होता है. उस इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर ही वो साइकिल स्टार्ट होता है. साइकिल हैज बीन स्टार्ट विद द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल मॉस्किटोज इनटू द ह्यूमन. सो फीमेल मॉस्किटोज जो होते हैं वो ह्यूमन को बाइट करते हैं, वहाँ से इसकी साइकिल स्टार्ट हो जाती है. सेकेंड जो है वो है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स. दिस इज द मोस्ट प्रीवेलेंट फॉर्म ऑफ मलेरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्शियन मलेरिया. ओके, बहुत ज़्यादा प्रीवेलेंट फॉर्म है, हमने पहले भी देखा था इसको. इट हैज़ an incubation period of 1 to 4 weeks cause spleen rupture and anemia. anemia का मतलब ये होता है कि हमारे बॉडी में से ब्लड काउंट का कम हो जाना, लेस RBC. तो इसका मतलब ये डायरेक्टली क्या करेगा, ये करेगा हमारे ब्लड जो होते हैं हमारे RBC इसको करेगा रप्चर, स्प्लीन रप्चर. ओके, थर्ड जो टाइप है वो हम बोल सकते हैं प्लाज्मोडियम मलेरिया. प्लाज्मोडियम मलेरिया में क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वार्टरन मलेरिया हैविंग 2 to 4 week इंक्यूबेशन पीरियड. अब इसकी जो हम लाइफ साइकिल जब हम पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि ये जो सारे के सारे जो प्लाज्मोडियम्स है उसके क्या रोल है हर एक लाइफ साइकिल के अंदर. अब फोर्थ वन है प्लाज्मोडियम ओवल. सो प्लाज्मोडियम ओवल जो है, इफ यू आर इन्फेक्टेड विद प्लाज्मोडियम ओवल, सो इट हैज़ द इंक्यूबेशन पीरियड अबाउट 9 to 18 days. सो नेक्स्ट अब हम जो बात करेंगे
वो होगा ड्रग डिस्कवरी। अब ड्रग डिस्कवरी क्या है और कैसे हुई मलेरिया की ड्रग डिस्कवरी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इट्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल। तो ये एक काइंड ऑफ हिस्ट्री है जिसको हम देखेंगे। इन 7th century द नेटिव पीपल ऑफ पेरू वॉज एक्सट्रैक्टेड अ बार्क ऑफ चिंकोना ट्रीज। उन्होंने चिंकोना ट्रीज का बार्क एक्सट्रैक्ट किया एंड यूज्ड अगेन फाइट चिल्स एंड फीवर, जो है हमारी ठंड और हमें जब बुखार होता है तो उस टाइम पे इसका यूज होता है। दिस हर्बल मेडिसिन वॉज इंट्रोड्यूस इन यूरोप फॉर द सेम पर्पज एंड ऑल्सो फॉर द ट्रीटमेंट अगेंस्ट द मलेरिया इन 1963। तो ये जो हर्बल मेडिसिन थी, जो चिंकोना ट्रीज का जो बार्क था, वो बार्क यूज किया गया यूरोप के अंदर इन 1963 के अंदर, also treat against the malaria. The quinine is formed as a class of quinine antimalarial drug which was isolated from the extract and the chloroquine is analogous of that one. So quinine drug जो था, quinoline antimalarial drug था which is isolated from this extract and chloroquine वो इसी class के अंदर belong करता है. The Hans Ansberg and co-workers at Bayer Laboratory was discovered the chloroquine in 1934 named as Roschine. Due to its toxic behavior for human use, it was ignored for a decade. उसको इग्नोर किया गया बहुत लंबे समय तक बिकॉज इट हैज इट्स टॉक्सिक इफेक्ट। 1934 को इन्वेंशन हो गया, उसकी डिस्कवरी हो गई एंड उसको रोस्टिन नाम भी दिया गया, बट स्टिल इट हैज लॉट्स ऑफ टॉक्सिक इफेक्ट टू द ह्यूमन बॉडी, सो इट्स इग्नोर्ड। इन द सेकंड वर्ल्ड वॉर द DAC इज अ काइंड ऑफ दैट आर्मी यूज द क्लोरोक्विन एनालॉगस 3-methyl chloroquine known as सोंटोक्विन। सो सोंटोचीन जो है सोंटोचीन जो है वो यूज किया गया कहाँ पे, सेकंड वर्ल्ड वॉर में, क्लोरोक्विन एनालॉगस के जो 3-methyl chloroquine था उस पर। After Allied forces reached to the Tunis, Sontocine fell into the hands of the Americans. So जब Allied force ट्यूनिस पे पहुंची तब वो सोंटोक्विन जो है वो अमेरिकन के हाथ लग गया and who sent the material back to the US of the analysis, leading to a renewed interest in a chloroquine. जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे क्लोरोक्विन को रिन्यूड करने में, उनको ये ड्रग दिया गया। And United States government sponsored clinical trials for antimalarial drug development shows the unequivalency that chloroquine has significant therapeutic values as an antimalarial drug. सो जो यूएस स्टेट गवर्नमेंट थी बहुत ही स्पॉन्सर किया क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए इस ड्रग के एंड इट शोज द डेवलपमेंट दैट ओके दैट इज परफेक्ट वन एंड दैट इज सिग्निफिकेंट थेरापेटिकल वैल्यू एज एन एंटीमलेरियल ड्रग। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द क्लिनिकल प्रैक्टिस इन 1947 फॉर प्रोफिलैक्टिक ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। सो ये जो सोंटोक्विन था उसको सोंटोसिन था उसको जो है यूएस गवर्नमेंट ने 1947 में प्रोफिलैक्टिक ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया के लिए यूज किया। सो नेक्स्ट वी मूव टू द कंट्रोल। सो सी हियर इन द कंट्रोल सेक्शन, in the real scenario, to control the spread malaria, there are mainly 3 well-recognized and predominant parameter has been utilized. Namely, एक elimination of mosquito carrier. हम इसको पहले mosquito carrier का elimination करेंगे, okay, फिर drug discovery होगी and then vaccination होगा। ये 3 टाइप है जिससे हम मलेरिया को कंट्रोल कर सकते हैं without taking any stuff or take a care as a care area. So elimination of mosquito carrier का मतलब क्या है? We'll take a deep look in that side. So currently elimination of mosquito carrier is prominent factor in terms of cost effectiveness and easiest way to adopt across the globe. अगर हम बात करें तो इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट इफेक्टिवनेस और easiest adopt, जो adoption power है बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि it's very simple and very easy to get that control step. Actually to control the elimination of mosquito carrier there is 2 different ways. हमारे पास 2 वे है। पहला एक वे है शॉर्ट में मैं आपको बताऊं तो पहला एक वे होता है कि हम कॉन्टैक्ट जो है ह्यूमन और इंसेक्ट के बीच में जो कॉन्टैक्ट होता है उसको हम बंद कर दें, कॉन्टैक्ट ना होने दें। और दूसरी जो बात है सेकेंडली हम बात करें तो हम इंसेक्टिसाइड्स का यूज करें ताकि हम इंसेक्ट को किल कर दें और वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में ही ना आए। ओके, so first we'll take a little bit more idea about what is the first contact or what is how we can prevent the contact between human and insects. So somehow here it was observed that the female Anopheles mosquitoes act as a key carrier which is nocturnal feeder. Nocturnal feeder का मतलब होता है night feeder. Night feeder का मतलब ये होता है कि रात में ही इसको खाना चाहिए। Means when an insect bite us, so it means जब बाइट करेगा तो वो खून एब्जॉर्ब करेगा, ब्लड हमारा लेगा, ब्लड जब हमारा लेगा तो सलाइवा अपनी छोड़ेगा। So, ये जो प्रोसेस वो करेगा वो नाइट टाइम में ही करेगा। कौन सा वाला? ये फीमेल एनोफिलिस मच्छर। सो इट इज वेरी इजी टू कंट्रोल, वो बहुत ही इजी है कंट्रोल के लिए। कॉरस्पॉन्डिंग टू एडिस इजिप्टी मॉस्किटोज बिकॉज एडिस इजिप्टी जो है वो डे टाइम फीडर है। सो इट्स डे टाइम फीडर यानी इट विल बाइट यू एनी टाइम इन द डे मोड। सो आप कहीं भी बाहर जा रहे हो, इट विल बाइट यू एंड यू सफर अ लॉट ड्यू टू एडिस इजिप्टी। मे बी यू अवेयर विद दैट मॉस्किटो। इफ नायलॉन और आयरन नेटिंग एंड मॉस्किटो नेटिंग इज इंस्टॉल्ड ऑन द विंडोज ऑफ बेडरूम in the hold the windows over our home, so it's effect prevention. हम उसको अच्छे से prevent कर सकते हैं, or we can close the doors in proper time, we can prevent that. Second is when we fail to do this one, the first one, then what should we do? We direct the elimination of Anopheles mosquito using the insecticides.
That is believed to be one of the most practical way of the prevention. Yes, of course, it's the most practical way. वही तो है, क्योंकि अगर हम इंसेक्टिसाइड्स को ही खत्म कर दे, फीमेल मॉस्किटो को ही खत्म कर दे, then we have nothing to bite us. So dichloro, diphenyl, trichloroethane or DDT is the extensive used insecticides to kill malaria carrying Anopheles mosquito completely. So it's complete kill actually the Anopheles mosquito, which discovered by the Nobel laureates Dr. Muller. So Dr. Muller ने discovery किया था 1948 में DDT का, and which is insecticides which kill the malarial carrying Anopheles mosquito completely. अब देखो जो mosquitoes होते हैं ना, it is vegetarian. Okay, it's not never took up anything apart of that. But जो mosquitoes pregnant होते हैं and they need a more nutrition, then suck the blood only. Otherwise, the rest of the mosquitoes are never suck the blood. They only suck the fruit pulp and all from the fruits and all stuff. So next अब हम बात करेंगे कंट्रोल के दूसरे सेक्शन की, जिसमें ड्रग थेरेपी एंड वैक्सीनेशन. अब ड्रग थेरेपी जो है उसमें क्या होगा? A drug can be isolated from the nature like quinine, quinidine, cinchocine, cinchonidine, artemisinin, and we can synthesize in laboratory as well like chloroquine, polydrine, parmaquine, primaquine, etc. being used for active antimalarial drug having a potent effect against a certain species. ठीक है, दैट इज अबाउट द ड्रग. ड्रग में हमने क्या किया कि भाई आइसोलेट अगर ड्रग लिया है तो बेटर है. दूसरा ऑप्शन है सिंथेसाइज ड्रग लैब में कर लो, क्लोरोक्विन को बना लो, प्रीमाक्विन को बना लो, पामाक्विन को बना लो, प्लूड्रीन को बना लो, वट एवर यू लाइक विच हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ एंटीमलेरियल यू कैन यूज इट हैविंग अ इफेक्टिव अगेंस्ट सर्टेन स्पीसीज. अब वैक्सीनेशन की बात है. सो लॉट्स ऑफ फंडिंग एजेंसीज वर्ल्ड वाइड रेडी टू गिव अ फंड. अभी भी वो एक पेंडेमिक है, अभी दैट इज नॉट रिलीज इट till yet. So what we think कि अगर हम इसको फंडिंग दे दे, रिसर्चर को फंडिंग दे दे to get the vaccination done for the malaria, and it is better option. So the design of malaria vaccine, the first step is identify to appropriate antigens and their formulations in the present which give rise to the desired protective immune system. ये चीज़ हमें पहले करनी होगी अगर हमें वैक्सीन बनाना है तो मलेरिया के अगेंस्ट में. वेरियस इम्यून मैकेनिज्म स्टिल मिस्टीरियस अगेंस्ट द प्रोटेक्शन ऑफ मलेरिया. बहुत सारे इम्यून जो है हमारे रिस्पॉन्स सिस्टम है, हमारे इम्यून मैकेनिज्म है, वो स्टिल अभी तक बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है. In addition, CD4 plus and CD8 plus T cell, हमारा T cell रिस्पॉन्सिबल होता है जिसके लिए. So CD4 plus and CD8 plus T cell response production of interferon gamma and nitric oxide synthase. प्रोडक्शन करता है वो इंटरफेरॉन गामा का, नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेसिस का. इंडक्शन सर्व्स एज सपोर्टिंग एविडेंस दैट ह्यूमन इम्यून सिस्टम इज एबल टू आइडेंटिफाई द पैरासाइट एंड रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली. तो ये जो एक पैराग्राफ है वो ये शो कर रहा है कि ह्यूमन इम्यून सिस्टम इसको आइडेंटिफाई कर रहा है और इसके अगेंस्ट में ट्रीट भी कर रहा है अकॉर्डिंग टू दैट विच क्या है हमारे पास कौन से पैरासाइट बॉडी में है उसके अगेंस्ट में. So CD4 plus CD8 plus T cell response is production. क्या प्रोडक्शन होता है उसमें? इंटरफेरॉन गामा का एंड नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेसिस इंडक्शन का. वो सर्व होता है सपोर्टिंग एविडेंस के लिए विच शोज अस कि ह्यूमन इम्यून सिस्टम जो है वो पैरासाइट को आइडेंटिफाई कर रहा है और रिस्पॉन्ड भी कर रहा है. नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की. ओके, सो क्लासिफिकेशन जो है मेनली 2 टाइप से होता है. 2 टाइप का क्लासिफिकेशन ड्रग का हमने आज तक देखा है, वो है थेरापेटिक एंड दूसरा है केमिकल. व्हाट इज थेरापेटिक क्लासिफिकेशन? अब हम नेक्स्ट स्लाइड में वही देखेंगे. What is therapeutic classification? So let's see in a therapeutic classification. अब जो therapeutic classification है उसके अंदर क्या होता है? This classification of malaria parasite drug on the basis of the therapeutic action or we can say appropriate stage of life cycle of malaria parasite has been divided into 5 stages. 5 स्टेज में इसको डिवाइड. Casual, prophylaxis और primary tissue squizanticides. The direction of the drug terminate either sporozoites of primary tissues formed by completely prevention of erythrocytic form. तो प्रीमाक्वीन और प्रोगविलिन ड्रग है हम इस स्टेज में यूज करते हैं. क्यों? क्योंकि ये जनरली यूज करते हैं एरिथ्रोसाइटिक फॉर्म इन्फेक्शन को प्रिवेंशन से. सप्रेसिव प्रोफिलैक्सिस, ट्रीटमेंट गिवन और एक्शन टेकन आफ्टर प्रिवेंट डिसीज, टेकन टू द प्रिवेंटेड डिसीज. ओके, डिसीज को प्रिवेंट करने के लिए हम जो यूज करते हैं वो. दिस टाइप ऑफ ड्रग ओनली इफेक्टिंग एट अ किलिंग मलेरिया पैरासाइट वंस इज एंटर टू द एरिथ्रोसाइटिक, इट मीन ब्लड स्टेज. एरिथ्रोसाइटिक स्टेज में जब वो आ जाता है ऑफ इट्स लाइफ साइकिल, देन therefore there will no effect until the liver stage is complete. So it should be continuous taken for 4 weeks after leaving the risk of area. Example है प्रोग्विनालिन, क्लोरोक्विन, डीऑक्साइक्लिन एंड मेफ्लोक्विन. ये जो 4 ड्रग है ना वो हम यूज़ करते हैं. आप रिस्क एरिया से बाहर निकल चुके हो, आपको मलेरिया क्योर हो चुका है, उसके बाद आपको 4 वीक तक ये ड्रग लेना है अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ मेडिसिनल डॉक्टर. अब जो नेक्स्ट है ना वो है स्टेज 3. स्टेज 3 क्लिनिकल क्योर और erythrocytic squizanticides. This kind of drug has been used for the terminating the episode of malarial fever. Malarial fever का जो एपिसोड जो हमें फीवर आता है, इस फीवर का एपिसोड को टर्मिनेट, यानी एपिसोड का मतलब ये होता है कि
एक पर्टिकुलर टाइम में फीवर आता है उसको हम टर्मिनेट कर सकते हैं। बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ ड्रग हैज बीन क्लासिफाइड इन दिस कैटेगरी। 2 टाइप के ड्रग क्लासिफाइड हुए थे। तो पहला ड्रग जो था वो फास्ट एक्टिंग था विथ हाई पोटेंट ड्रग, दूसरा था स्लो एक्टिंग विथ लो पोटेंट ड्रग। सो फास्ट एक्टिंग में क्या है, एज अ क्लास सजेस्ट दैट ड्रग हैविंग अ फास्ट एक्शन पावर एंड हाई पोटेंसी टुवर्ड्स अ मैलेरियल पैरासाइट। और स्लो एक्टिंग में क्या था, उसके अंदर ड्रग हैज अ स्लो एक्शन पावर एंड लो इफेक्टिवनेस टुवर्ड अ मैलेरियल पैरासाइट। सिंपल बात है ये। अब उसके बाद का स्टेज जो था वो था रेडिकल्स ट्रीटमेंट, इट मीन्स एंटी रिलैप्स थेरापी। क्या होता है इसमें जरा देख। इन दिस क्लास ऑफ द ड्रग ट्रीटमेंट अ comprehensive elimination of erythrocytic stage and persisting tissue stage of the parasite from the body so that relapse cannot be। क्या कर रहा है यहाँ पे देखो, comprehensive elimination of erythrocytic stage, उसको यहाँ से एलिमिनेट कर रहा है ताकि वो नेक्स्ट स्टेज में पहुँचे ही ना। दैट इज अवर गोल, कि वो नेक्स्ट स्टेज में पहुँचे ही नहीं। तो वहाँ से हम उसको देखेंगे। इन द केस ऑफ वाइवेक्स, मलेरिया एंड ओवल इन्फेक्शन, this implies to use drug which have destroyed the secondary tissue squamousides or secondary tissue phase of parasites. The curative effect of the drug depends upon the amount of parasite in the body. अब जो कोई भी ड्रग की जो इफेक्ट होती है ना, वो किस पे डिपेंड होती है, हमारे बॉडी के अंदर कितने अमाउंट में पैरासाइट है उसके। सो कंसंट्रेशन ऑफ पैरासाइट, जब तक कंसंट्रेशन ऑफ पैरासाइट नहीं होता है तब तक कोई भी ड्रग इफेक्ट नहीं करती है। सो इन द केस हम यूज करेंगे Primaquine and quinosides provide a high efficiency in a fewer side effect compared to Primaquine and plasmosides. Generally, it is a combination therapy. We can use suppressive drug and hypnozoetical drugs. So हम क्या यूज करेंगे, suppressive drug यूज करेंगे and hypnozoetical drug को यूज करेंगे in a combination therapy of radical treatment. नेक्स्ट जो है वो आखिर है गैमेटोसाइटिकल ड्रग। अब ये जो है ना, गैमेटोसाइटिकल ड्रग क्या है, वो सेक्सुअल फॉर्म ऑफ ह्यूमन मैलेरिया पैरासाइट विच हेल्प टू प्रिवेंट ट्रांसमिट टू मैलेरिया पैरासाइट। सो इसको स्टॉप करता है सेक्सुअल फॉर्म को। 2 टाइप होते हैं, एसेक्सुअल, सेक्सुअल फॉर्म को स्टॉप कर देता है। सो फॉर दैट वन इसको हम देखेंगे Primaquine एंड आर्टेमिसिनिन टेक अगेंस्ट ऑल टाइप ऑफ प्लाज्मोडी, कोई भी प्लाज्मोडी हो इसके अगेंस्ट में ये काम करता ही करता है। क्विनिन, मेप्रासिन, क्लोरोक्विन, Amodiaquine have an action on gametocytes of P. vivax and P. malariae. Proguanilin, pyrimethamine help to prevent development of sporocytes. So ये 3 जो ड्रग यहाँ पे मेंशन है, फर्स्ट वाला जो था वो Primaquine, आर्टेमिसिनिन, वो किसी भी टाइप के प्लाज्मोडी पे एक्ट होता है, यानी उसके अगेंस्ट में एक्ट हो सकता है, उसके अगेंस्ट में वो अच्छा सा रोल प्ले करता है। क्विनिन, मेप्रासिन, क्लोरोक्विन जो है वो गैमेटोसाइट्स P. vivax से, P. malariae से होता है, तो उसको वो प्रिवेंट करता है। एंड प्रोगुनिलिन जो है एंड पायरिमिथामिन वो हमें क्योर करवाता है डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोसाइट से, या क्योर करता है डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोसाइट। तो ये 3 एक्शन है जो हमें लेने चाहिए ताकि मलेरिया किसी में और मलेरिया साइकिल के अंदर वो वापस ना जाए मॉस्किटो में, और मॉस्किटो से वापस किसी और पर्सन को इन्फेक्ट ना करे। सो नाउ विल स्विच टू द केमिकल क्लासिफिकेशन। देखो, केमिकल क्लासिफिकेशन एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही बड़ी ब्रांच है जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। बेसिकली इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री that stuff is very important. Pharmaceutical chemistry, that point is very important. अब ये जो पहले 2 है ना, 4-aminoquinoline, 8-aminoquinoline, वो भी एक ही क्लास से बिलोंग करते हैं। इसको aminoquinoline एनालॉगस, ये अमीनो एक्रिडिन एनालॉगस है, ग्वानिलीन एनालॉगस है, पिरिमिडिन एनालॉगस है, सल्फोन एनालॉगस है, क्विनिन एनालॉगस है, एंड लास्ट इज न्यूमेरियल ड्रग। सो हम उसकी क्लासिफिकेशन भी देखते हैं कि कौन कौन से ड्रग हमारे पास अवेलेबल है। देखो, एमिनोक्विनोलिन एनालॉगस ड्रग हमारे पास अवेलेबल है, एमिनो एक्रिडिन ड्रग अवेलेबल है, ग्वानिलीन एनालॉगस है, पिरिमिडिन एनालॉगस भी है, सल्फोन्स है, क्विनीन्स है, एंड न्यूमेरियल ड्रग है। जो एमिनोक्विनोलिन ड्रग है उसके अंदर 4-aminoquinoline एंड 8-aminoquinoline जो है 1-2 सब पार्ट उसके है, उसके अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रग बैठती है और ड्रग होती है। एमिनो एक्रिडिन जो है वो क्विनाइक्रिन एंड मेप्रिसिन एंड एमिनो एक्रिन ड्रग इसमें इन्वॉल्व है। ग्वानिलीन के अंदर प्रोग्विनिल हाइड्रोक्लोराइड, साइक्लोग्वानिलीन, प्रोरोग्वानिलीन, ब्रोमोग्वानिलीन, ऐसे सारे बहुत से ड्रग होते हैं। पिरिमिडिन के अंदर पायरिमिथामाइन एंड ट्राइमिथोप्राइम अवेलेबल है डिसीज के लिए, अगर पिरिमिडिन ड्रग का हमें यूज करना है तो। सल्फोन्स के अंदर 4,4-डाई एमिनो डाइफिनाइल सल्फोन डेप्सोन यूज करना है तो डेप्सोन भी है। क्विनिन एनालॉगस में क्विनिन सल्फेट है, न्यूमेरियल ड्रग में मेफ्लोक्विन है। हम जब इसकी सिंथेसिस देखेंगे तो हम कौन कौन सी ड्रग देखनी है सिंथेसिस के अंदर, यहाँ पे भी एक ड्रग हम देखेंगे, इसके साथ भी एक ड्रग देखेंगे। यहाँ से हमें कोई ड्रग सिंथेसिस की देखनी नहीं है पर्टिकुलर दिस टॉपिक। हम डेप्सोन की सिंथेसिस देखेंगे, हम देखेंगे फिर यहाँ पे मेफ्लोक्विन की सिंथेसिस, और 2 वहाँ से ऊपर से 5 ऐसे सिंथेसिस हमें देखनी है। वी विल टू कंप्लीट द सिंथेसिस पोर्शन व्हेन वी आर रीच्ड ओवर देयर। अब बात करेंगे 4-aminoquinoline एनालॉगस। देखो 4-aminoquinoline एनालॉगस है क्या, उसको पहले समझते हैं। देखो 4-aminoquinoline क्यों हुआ, इसका नंबरिंग अब लिखेंगे तो कैसे आएगा, 1, 2, 3 एंड 4। तो 4th पोजीशन पे एमिनो ग्रुप है, दैट इज कॉल्ड 4-aminoquinoline, सिंपल। तो एमिनोक्विनोलिन डेरिवेटिव act as an antimalarial agent to treat erythrocytic plasmodium infection
which include the Mefloquine, Chloroquine and hydroxychloroquine. It is also used as antibacterial, anti-asthmatic, antifungal and anti-inflammatory, antiviral, and we know it's just used as an antimalarial drug. Example इसके Amodiaquine, Chloroquine, hydroxychloroquine and Santoquine जो मैंने आपको अभी ऊपर. Next जो है वो है 8-aminoquinolone एनालॉगस. अब 8-aminoquinolone एनालॉगस में है क्या? कुछ नहीं है. यहाँ पे जैसे पोजीशन था हम ऐसे मेंशन करेंगे, ठीक है. यहाँ पे नाइट्रो है, तो यहाँ से मैं नंबरिंग स्टार्ट करूँगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and it's 8. So 8 पोजीशन पे एमिनो ग्रुप है, so we can call it 8-aminoquinolone. The aminoquinolone analogous agents are antimalarial agents to eradicate the malarial hypozoontis from liver and have been used for the malarial prophylaxis. So malarial prophylaxis में यूज है, पर क्या करता क्या है, इसका यूज क्या है कि हाइपोजॉन्टिस मलेरिया होता है, यानी जो लीवर में मलेरिया होता है उसको ये निकालता है. साइकिल में क्या है, लीवर से मलेरिया निकलता है, ब्लड सेल में जाता है, ब्लड वेसल ब्लड्स को आरबीसी को इन्फेक्ट करता है, इन्फेक्ट करने के बाद वहां से रप्चर ब्लास्ट होता है, ब्लास्ट होने के बाद वापस वो जो है फॉर्म के अंदर मस्कुलर में जाता है. ओके, पहले शुरू होते हैं ब्लड से आते ही वो हमारे लीवर के अंदर जाता है, लीवर के जाते ही वहाँ पे अच्छे से वहाँ पे यानी उसको खाना पीना मिल जाता है यार, अच्छे से बैठता है वहाँ पे, और फिर जब पर्टिकुलर टाइम आता है देन इट इज स्पॉट आउट एंड वो 1 लाखों में कन्वर्ट होकर फिर वो ब्लड स्ट्रीम में एंटर होता है. ब्लड स्ट्रीम में एंटर होते ही कोई भी एक आरबीसी जो है वो कोई एक आरबीसी को पकड़ता है, उसको इन्फेक्ट करता है, और फिर अगेन जो इन्फेक्टेड आरबीसी है वो ब्लड वेसल में नीचे बैठ जाता है, वो ब्लास्ट होता है. ब्लास्ट होने के बाद सारे जो वहाँ से जो स्पोरोसाइट निकलते हैं वो वापस जो है वो दूसरे आरबीसी को करते हैं, और इससे हमें एनीमिया होता है. ये एक है, ये इसको ही किल करता है, तो वो आगे जो है ये ड्रग 8-aminoquinolone ड्रग वो आगे नहीं आने देती है, लीवर फॉर्म से ही आगे नहीं आने देती है, तो प्रोफिलैक्सिस को बंद कर देता है. इट किल्स ऑल द स्टेजेस ऑफ मलेरिया पैरासाइट. देखो ये बड़ी अच्छी बात है इसकी. सो दे आर पर्टिकुलरली वेल सूटेबल फॉर मलेरिया एलिमिनेशन. बहुत ज़्यादा सूटेबल है. पामाक्वीन है, प्रीमाक्वीन है, पेंटाक्वीन है, आइसोपेंटाक्वीन है एंड क्विनोसाइड्स है. ये 5 ड्रग है इस क्लास के अंदर. अब बात करेंगे एमिनो एक्रिडीन एनालॉगस. अब एमिनो एक्रिडीन में ऐसा तो क्या है, 9 एमिनो एक्रिडीन होता है एक्चुअली. 9 नंबर हम डिसाइड करेंगे कैसे आता है कैसे नहीं आता है, पर इट इज 9 एमिनो एक्रिडीन. देखो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करोगे आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9. यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करना है. ये 9 एमिनो एक्रिडीन है. देखो तो 9 एमिनो एक्रिडीन डेरिवेटिव हैज फाउंड टू बी हाईली टॉक्सिक कंपेयर टू 4 एमिनोक्विनोलिन एनालॉगस. ओके, ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, उसका रीजन एक अलग है, क्योंकि ये वाला पोर्शन तो 4-aminoquinolone है, पर ये बेंजीन रिंग है ना, इट गिव्स टॉक्सिसिटी. इन एडिशन टू दिस, इट इज हाईली फ्लोरोसेंट डाई यूज्ड इन क्लिनिकल एज अ टॉपिकल एंटीसेप्टिक एंड एक्सपेरिमेंटली एज अ म्यूटेजन and intercellular pH indicator. Also used for negative mode small molecule matrix, MALDI matrix में भी यूज होता है. अब देखो ये हाईली फ्लोरोसेंट डाई भी यूज होता है बॉडी के अंदर. तो क्यों हाईली फ्लोरोसेंट डाई होता है? बिकॉज यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे पूरे का पूरा एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, यहाँ पे पूरे का पूरा पाई क्लाउड है, यहाँ पे पाई क्लाउड भी पूरा है, यहाँ पे भी पाई क्लाउड का रोटेशन चल रहा है. तो क्या होगा कि ये जो लॉन पेयर है ना, और यहाँ से जो लॉन पेयर है वो इलेक्ट्रॉन जब तक देता रहेगा तब तक ये पाई क्लाउड रोटेशन पूरा होता रहेगा, और यहाँ पे कंप्लीट एक अच्छा सा फ्लोरोसेंस निकलेगा. फ्लोरोसेंस ऐसे निकलता है, तो फ्लोरोसेंस का मतलब हम सबको पता है कि क्या है, ठीक है. अगर नहीं है तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे व्हाट इज द फ्लोरोसेंस. इसके अंदर ही थोड़ा सा मैं आपको एक आइडिया दे दूंगा. इस क्लास के अंदर क्विनाक्रीन और एमिनोएक्रिचिन बिलोंग करता है. 2 ड्रग इस क्लास के अंदर बिलोंग करता है. नेक्स्ट हमें देखना है ग्वानिलीन एनालॉगस. देखो ग्वानिलीन एनालॉगस में ऐसी चीज़ है कि यहाँ पे इतने सारे आपको NH दिख रहे हैं, पर ये एक्टिव नहीं है. अब क्यों वो देखते हैं. तो ग्वानिलीन एनालॉगस एजेंट्स आर act as antimalarial only if cyclized metabolically to a dihydroestriazine. अगर dihydroestriazine में वो cyclize होता है तो ही वो जो है एंटीमलेरियल एक्ट करता है, बिकॉज उसका रिजेम्बलेंस हो जाता है पायरिमिथामीन से और पेट्रिडिन मोइटी से. फॉलिक एसिड जो है उसकी पायरिमिथामीन और पेट्रिडिन मोइटी से उसका रिजेम्बलेंस हो जाता है. द फॉलोइंग ड्रग्स लाइक प्रोग्वानिलिन, साइक्लोग्वानिलिन, क्लोरोप्रोग्वानिलिन एंड ब्रोमोग्वानिलिन जो है वो इसका एक. अब नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे वो है पिरिमिडिन एनालॉगस. अब देखो पिरिमिडिन एनालॉगस में क्या बताना चाह रहा है कि पिरिमिडिन एनालॉगस इटसेल्फ उसके अंदर 2 नाइट्रोजन है बेंजीन रिंग के अंदर, तो पिरिमिडिन हम बोलेंगे इसको. इसके अंदर देख रहे हो यहाँ पे भी NH2 है, यहाँ पे भी NH2 है. दैट इज पिरिमिडिन एनालॉगस. अब देखते हैं रोल क्या है, किसका क्या रोल. द पिरिमिडिन एनालॉगस आर एंटी मेटाबॉलिटिक्स दैट इंटरफेयर द न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस. क्या करता क्या है, ये न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस को रोकता है. हम जब इसकी SAR देखेंगे ना तो हम मोड ऑफ एक्शन इसका भी देखने वाले हैं, पिरिमिडिन एनालॉगस ड्रग का मोड ऑफ एक्शन. सो उस मोड ऑफ एक्शन में हम देखेंगे कि हाउ इट्स प्रिवेंट विद कॉम्बिनेशन विद अदर ड्रग्स. कैसे वो प्रिवेंट करता है मलेरिया को विद द कॉम्बिनेशन. इट बिहेव एज अ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल व्हिच रिक्वायर स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन टू ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल. एज एंटीमलेरियल ड्रग the mode of action of kind analogous are exoerythrocytic and erythrocytic form of P. falciparum together with exoerythrocytic form of P. vivax. The following list of drugs are in the category of pyrimidine analogous: pyrimethamine and trimethoprim. ये 2 ड्रग है इस क्लास के अंदर आती है.
अब नेक्स्ट जो है वो है सल्फोन्स। सल्फोन्स के बारे में सबको पता है, सल्फोन्स की सेल्फ की ब्रिज पे SO2 होना, ठीक है। A large number of diphenyl sulfone analogs have been developed for the treatment of leprosy. Leprosy क्या है? लेप्रोसी जो है ना वो अलग टाइप का डिसीज है, लेप्रोसी के बारे में भी अच्छे से हम पढ़ेंगे, डोंट वरी। 4,4- डायमिनोफिनाइल सल्फोन इज अ मेंबर ऑफ द क्लास ऑफ इंसिडेंटली। ओके, ये कोई था नहीं कि इसने शो कर दिया, बट इंसिडेंटली इज पोटेंशियली प्रोफिलैक्टिक एक्टिव अगेंस्ट द रेजिस्टेंस ऑफ पी फाल्सिपेरम। सो डेप्सोन पायरिमिथामाइन का कॉम्बिनेशन यूज होता है, इज इफेक्टिवली यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया ड्यू टू द क्लोरोक्विन रेजिस्टेंस पी फाल्सिपेरम। अगर कोई पी फाल्सिपेरम है जो क्लोरोक्विन से रेजिस्ट हुआ है तो हम इसकी कॉम्बिनेशन के साथ यूज करते हैं। किसका कॉम्बिनेशन? पायरिमिथामाइन की, यानी पिरिमिडिन एनालॉगस जो थे उसके कॉम्बिनेशन के साथ इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट जो है वो क्वीन एनालॉगस। अब क्वीन तो हमने पहले ही देखा है, क्वीन एनालॉगस में था कुछ नहीं। देखो ये क्वीन का स्ट्रक्चर है जो हमें बाग से जो मिला वही क्विनिन है और इज फ्रॉम रुबिस्कियस फैमिली, ओके, और अदर स्पीसीज ऑफ चिंकोना। तो क्विनिन अफेक्ट द इरिथ्रोसाइटिक फॉर्म ऑफ प्लाज्मोडियम, ओके, ये इरिथ्रोसाइटिक फॉर्म पे ही इफेक्ट करता है। इट इज वाइडली यूज्ड फॉर द सप्रेशन एंड द कंट्रोल ऑफ मलेरिया कॉज्ड बाय पी वाइवेक्स, पी मलेरिया एंड पी ओवल। इट हैज बीन फाउंड टू बी लेस इफेक्टिव एंड पी फाल्सिपेरम। फाल्सिपेरम बहुत ही लेस इफेक्टिव है। इट इज रेयरली यूज्ड नाउ एक्सेप्ट फॉर अ क्लोरोक्विन रेजिस्टेंस केसेस व्हेन इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इज फॉलोड by the combination of pyrimethamine and sulfoxamine। अगर इसका कॉम्बिनेशन देखो क्या है, it is a rarely used now except for the chloroquine resistance cases when its administration is followed by combination of pyrimethamine and sulfoxamine। अगर रजिस्ट हो चुका है और इसके एडमिनिस्ट्रेशन के बाद हम इसको फॉलो करते हैं वो रेयरली यूज होता है। क्विनिन सल्फेट इसके क्लास में आता है। सो नेक्स्ट विल स्विच टू द न्यू एंटीमैलेरियल ड्रग। ये क्या है? इंक्रीजिंग एंटीमैलेरियल ड्रग रेजिस्टेंस इज थ्रेटनिंग इफेक्टिव एंटीमैलेरियल ड्रग। तो ये ड्रग ट्रीटमेंट को बहुत फिटन पैदा कर रहा है, हमें बहुत डर लगा रहा है कि भाई अगर रेजिस्टेंस एंटीमैलेरियल ड्रग से हो रहे हैं पैरासाइट्स तो इट्स डिफिकल्ट टू control the malaria as well as elimination of malaria. So in the case of Vivax malaria or P Vivax, chloroquine resistance is an increasing problem. Chloroquine resistance जो हो रहा है it's increase, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इंक्रीज कर रहा है। आर्टेमिसिनिन कॉम्बिनेशन थेरापी, इसको बोलते हैं ACTS, आर्टेमिसिनिन कॉम्बिनेशन थेरापी। The combination artemether, lymphatrine and amodiaquine and DHA dihydroxy, DHA, Primaquine and Mefloquine are currently studied for their effectivity or the potency or the effectiveness and safety in the treatment of unaccomplished falciparum malaria in area case of artemisinin and partner drug resistance। अगर ये रेजिस्टेंस है तो हम नई ऐसी ड्रग बनाएंगे और नए ऐसे कॉम्बिनेशन देंगे जो इन दोनों को केस में हमें हेल्प कर दे टू किल द मलेरियल पैरासाइट। पहला आता है आर्टेमिसिनिन, दूसरा आता है Lumefantrine and the third one is Mefloquine। हम इसकी सिंथेसिस डीप में देखेंगे Mefloquine की। So next we'll switch to the बात है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। ओके, देखो हमें इन तीन की स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप पढ़नी है। पहली तो है 4-amino-quinoline, जिसमें हम बात करेंगे कि 4 पोजीशन पे अगर क्विनोलिन है तो जो हम उस पर जो पोजीशन उसका है उस पर कितने सारे चेंजेस करेंगे और हमें एक्टिविटी रिलेशनशिप पे क्या क्या डिफरेंस मिलेगा। 8 में भी सेम पोजीशन की हमारे जो नेक्स्ट कार्बन पे और उसके नेक्स्ट के बाद जो जंक्शन के बाद के जो कार्बन है वहाँ पे अगर हमने NH2 लगाया हुआ है तो NH2 के लगने से और उसके डेरिवेटिव लगने से क्या क्या इफेक्ट आते हैं हमारे ड्रग के अंदर, वेदर वो मोर पोटेंट होती है, लेस पोटेंट होती है। और एक्रिडिन के अंदर अगर 4 अमीनो ग्रुप को लिया और साथ में बेंजीन को लिया, फ्यूज किया तो हमें क्या इफेक्ट मिलता है, क्या एक्टिविटी निकलती है ग्रुप के चेंजेस होने से, ग्रुप के बढ़ने से। ये हम पूरी की पूरी स्टडी स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप में करेंगे। सो स्विच टू दैट 4-amino-quinoline। हमें पता है, हमने अभी देखा कि 4-amino-quinoline में C4 पोजीशन, ये वाली पोजीशन पे R1 होता है। ये R1 पे हम चेंजेस करेंगे, ओके, एंड देन वी गेट समथिंग नियर बाय चेंज कि भी इसकी एक्टिविटी बढ़ गई, इसकी एक्टिविटी कम हो गई, ये ड्रग ज़्यादा एक्टिव है, ये ड्रग कम एक्टिव है। सो स्विच टू द टेबल फॉर्म। देखो अब जो क्लोरोक्वीन है मेरे पास, ठीक है ना, तो क्लोरोक्वीन के अंदर क्या है, यहाँ पे देखो ये R1 पोजीशन है। पहले तो मैं पोजीशन आपको समझ लीजिए, R1 है, R2 है, R3 है, R4 है, R5, R6। देखो सब जगह में R1 सारी पोजीशन सेम है, R2, R3, R4, R5, R6 एक ही जगह में। सॉन्टोक्विन में सिर्फ यहाँ पे CH लगता है। वो किसके साथ में है, वो क्लोरोक्विन और सॉन्टोक्विन को आप देखोगे ऑलमोस्ट सेम है, बट जो R6 पोजीशन में चेंज है। ओके, सो इन दो केस के अंदर R6 पोजीशन में चेंज आ रहा है, जस्ट CH3 है एट R6, अदरवाइज रेस्ट ऑफ स्टॉप इज सेम। अब जो हम बात करेंगे वो बात है इन दोनों के बीच की। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर यहाँ पे जो है वो CH2 है, CH2OH हमने लगाया। यहाँ पे CH2 CH3 था, यहाँ पे CH2 OH लगाया है, OH ग्रुप यहाँ पे हमने एडिशन किया हुआ है। सो क्लोरोक्विन के अंदर CH2 CH3 था, यहाँ पे OH। एमोडियाक्विन के अंदर यहाँ पे जो है वो एमिनो यानी बेंजीन रिंग है पूरी की पूरी, उसके साथ OH ग्रुप हमने अटैच। इससे क्या इफेक्ट निकलते हैं हम देखते हैं। जैसे जैसे कंसिडरेशन ऑफ SAR रिवील्स दैट द टर्शरी एमाइन इज इम्पोर्टेंट फॉर। टर्शरी एमाइन क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द साइड चेन लेंथ एंड द 7 क्लोरो ग्रुप आर ऑप्टिंग।
तो साइड चेन लेंथ एंड सेवरल क्लोरो ग्रुप को हमने एज इट इज रखा है। देखो उसको हमने कुछ भी नहीं किया है, सब आप देख लो, सब हर हमारे ड्रग कंपाउंड है उसके अंदर। मैंने यहाँ पे बाय द वे सारे जो हमारे कंपाउंड्स थे उसकी एक स्ट्रक्चर आपको दी हुई है, बिकॉज दैट यू आर अवेयर कि कैसे दिखते हैं, ठीक है। ये पूरे का पूरा ऐसे यहाँ पे होता है। अब हम देखेंगे यहाँ पे, अब हम क्या देखेंगे कि भाई द सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप ऑन वन ऑफ द अदर ग्रुप ऑन टर्शरी अमीन जनरली रिड्यूस द टॉक्सिसिटी एंड इंक्रीज द प्लाज्मा कंसंट्रेशन। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के अंदर वो टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करता है और प्लाज्मा कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग इन द साइड चेन एज इन एमोडियाक्विन प्रोड्यूस द कंपाउंड रिड्यूस एक्टिविटी एंड टॉक्सिसिटी। तो ये जो ग्रुप है ना, ये वाला ग्रुप टॉक्सिसिटी को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देता है। क्यों करता है मैं आपको समझाता हूँ, मुझे थोड़ा टाइम। इंट्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मिथॉक्सी ग्रुप एट पोजीशन 2 and 5 इंक्रीज द थेरापेटिक इंडेक्स। पोजीशन 2 and 5 की बात चल रही है। ओके, सो 1 2 यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, इन दो पोजीशन पे अगर हम कुछ भी करके थेरापेटिक इंडेक्स को इंक्रीज करना है तो सेकेंडरी मिथॉक्सी ग्रुप को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। इवन नंबर ऑफ मिथिलीन ग्रुप आर फाउंड टू बी लेस एक्टिव। अब देखो ये जो बात है ना यहाँ पे भी है और ये वाली बात इस चेन कार्बन पे भी लागू होती है। देखो मैं आपको पीछे समझाता हूँ। द टर्शरी अमीनो ग्रुप बी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, बट एरोमेटिक एमाइन मस्ट बी ए सेकेंडरी। एरोमेटिक एमाइन जो है वो मस्ट बी सेकेंडरी होना चाहिए, एरोमेटिक एमाइन जो है वो। और ये जो लास्ट चेन है ये वाली क्या हो सकती है, प्राइमरी भी हो सकती है, सेकेंडरी भी हो सकती है, टर्शरी भी हो सकती है। अब जो हम बात करेंगे वो है 8 एमिनो क्विनोलिन के बारे में। सो 8 एमिनो क्विनोलिन के अंदर क्या होता है, 8 पोजीशन है यहाँ पे, इस कार्बन पे NH2 लगता है, इस कार्बन पे फंक्शनलाइजेशन होता है, R4 पोजीशन में फंक्शनलाइजेशन करेंगे पूरे का पूरा। सो टाइम वेस्ट नहीं करते और इसके टेबल फॉर्म को हम देख लेते हैं। देखो 8 एमिनो क्विनोलिन है, इसका टेबल फॉर्म पे लगे देख ही लेते हैं। 5 ड्रग हमारे पास अवेलेबल है। अब देखो कि यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं है, R1 R2 R3 R5 R6 सब में एक ही जैसे स्ट्रक्चर है। इसको ऑप्टिंग किया हुआ है OCH3 को। प्रीमाक्विन, पामाक्विन, क्विनोसाइड, पेंटोक्विन, आइसोक्विन और आइसोपेंटाक्विन बोलते हैं हम। देखो यहाँ पे कार्बन की पोजीशन 1 2 3 4 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 1 2 3 4 है, बट है तो कार्बन 5 बिकॉज इस साइड चेन के अंदर। यहाँ पे साइड चेन को काउंट कर दो 6 कार्बन होते हैं, बट ठीक है। तो 5 कार्बन इसमें है, 5 कार्बन इसमें है, 1 2 3 4 5 5 कार्बन इसमें भी है एंड 1 2 3 4 कार्बन इसमें है। तो यहाँ पे देख रहे हो इन दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा कम है। अब हम पहले बात करेंगे इन दो की, प्रीमाक्विन एंड पामाक्विन। प्रीमाक्विन के अंदर NH2 ग्रुप है, पामाक्विन के अंदर C2N C2H5। अब हम बात करेंगे क्विनोसाइड्स की। क्विनोसाइड में क्या चीज है, क्विनोसाइड के अंदर पहली तो बात है कि एक जो है हमारे पास वो साइड चेन है, ओके। यहाँ पे NH है, उसके साथ 1 2 3 4 कार्बन लगे हैं और कार्बन के बाद नाइट्रोजन जो है उसके पास CH3 ग्रुप। यहाँ पे पेंटाक्विन के अंदर 5 कार्बन लगे हैं, 5 कार्बन के बाद नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास CH3 ट्वाइस ग्रुप है। और यहाँ पे भी सेम ही है, बट कार्बन 1 जो है, जो नाइट्रोजन के पास वाला कार्बन है ना, वहां पे एक ब्रांच लगी हुई है। तो ऑब्वियस है ब्रांच लगी हुई है तो ज्यादा इफेक्टिव होगा इससे। वो कैसे हम देखते हैं नेक्स्ट हमारी स्लाइड में। सो इसके अंदर हम ये देखेंगे, देखो पहले तो ये 5 कंपाउंड है। 8 एमिनो एनालॉगस ड्रग है कंटेन क्विनोलिन रिंग हैविंग एंटीमैलेरियल प्रॉपर्टी। द प्रॉपर्टी इंक्रीज आफ्टर द एडिशन ऑफ साइड चेन एट एमिनो ग्रुप ड्यू टू द क्विनोलिन रिंग। ओके, प्रॉपर्टी किसकी वजह से है, क्विनोलिन रिंग की वजह से, ऐसे बता रहे हैं। So OCH3 is not necessary for the antimalarial activity, but when it's replaced with OC2H5, it shows less activity and high toxicity. It means reduce the activity as antimalarial drug. क्या कर रहा है वो? Reduce कर रहा है activity। अगर आप OCH3 को OC2H5 में change करोगे तो so we can keep OCH3 optim. OCH3 को हम कुछ भी नहीं करेंगे, as it is रखें। In addition to that, when OCH3 group replaced with CH3 compound becomes inactive. Okay, OCH3 से CH3 निकालोगे वो inactive बन जाएगा। कैसे, मैं समझाता हूँ आपको। It is very good stuff to understand. When we introduce the halogen atom, it increases the toxicity and the drug becomes less potent as an antimalarial drug. So halogen introduce नहीं कर सकते, करेंगे तो drug less potent हो जाएगी। Parmaquine having a tertiary amino group, when it's converted to the primary amino group, is called Parmaquine, Primaquine, which is less toxic and well tolerated drug. यहाँ पे क्या है, Parmaquine में ये ग्रुप है, इसको अगर मैं NH2 में कन्वर्ट करेंगे तो लेस टॉक्सिक हो जाएगा। अब जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे पॉकेट कैविटी है ना, ये डिफरेंट होती है OCH3 की। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। ये पॉकेट कैविटी है OCH3 की, ठीक है। यहाँ पे H है, यहाँ पे पॉकेट कैविटी है OCH2 CH3 की, और यहाँ पे सिर्फ पॉकेट कैविटी है CH3 की। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे देखो पॉकेट कैविटी चेंज है बहुत सारी। यहाँ पे पॉकेट कैविटी ऑक्सीजन की वजह से चेंज हो रही है, यहाँ पे भी पॉकेट कैविटी जो है वो चेंज हो रही है ड्यू टू द ऑक्सीजन, ठीक है। ऐसे पॉकेट कैविटीज चेंज होती रहती है ड्यू टू द ऑक्सीजन। तो पॉकेट कैविटी की वजह से टॉक्सिक इफेक्ट होता है। हेलोजन डालते ही हेलोजन का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर होता है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेता है और जो हमारी रिंग है उसको डीएक्टिवेट कर देता है, और इसकी वजह से ओके टॉक्सिसिटी जो होती है उसकी बढ़ती है और ड्रग जो होता है वो लेस पोटेंट बन जाता है। देखिए अब हम देखते हैं कि आगे जो बात है वो ये है कि द क्विनोलिन रिंग इज नेसेसरी फॉर द एंटीमैलेरियल एक्टिविटी। वो पहले मैंने बात की थी। व्हेन अ pyridine ring is converted to the p-pyridine ring,
सैचुरेटेड। पिरीडीन का मतलब होता है ये, पिरीडीन का मतलब होता है यहाँ से ये जाए, यहाँ से ये जाए तो NH बनेगा। जब हम क्लोरीन अटैच करेंगे कहीं पे भी तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, पुल करने के बाद डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये पिरीडीन में कन्वर्ट हो जाएगा, कंपाउंड क्या बनेगा, इनएक्टिव। When pentaside chain at C8 explore the maximum activity as a potent malarial drug, but slightly modification to that increase and decrease leads to the reduction in the potency of malaria. So pentaside drug जो है यहाँ की, इसकी अब बात चल रही है, ये क्या होता है, देखो यहाँ पे भी एक हम ऐसे देखे कि इसकी जो पॉकेट कैविटी होती है वो भी चेंज होती है ना, इससे पॉकेट कैविटी चेंज होती रहती है। देखो यहाँ पे, यहाँ की सबकी पॉकेट कैविटी अपने हिसाब से डिफरेंट है। यहाँ पे अगर ये है तो इसकी पॉकेट कैविटी इससे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो ये पॉकेट कैविटी बहुत ज़्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब व्हेन अ ब्रांच चेन इज कन्वर्टेड इनटू द स्ट्रेट चेन, द ड्रग कॉल्ड पेंटाक्विन हैव लेस इफेक्टिव कंपेयर्ड टू द पामाक्विन। ब्रांच चेन जो है अगर नॉर्मल चेन में होती है तो लेस इफेक्टिव हो जाती है, किसे, पामाक्विन एंड प्रीमा, इन दोनों से भी लेस इफेक्टिव हो जाती है क्योंकि ब्रांच चेन इज इंपॉर्टेंट। द 6-methoxy ग्रुप एंड 4-6 कार्बन साइड चेन प्रोवाइड बेस्ट एक्टिविटी। तो क्या है कि 6 पोजिशन पे मिथॉक्सी ग्रुप होना चाहिए और 4 to 6 कार्बन लेंथ होना चाहिए, प्रोवाइड गेट अ बेस्ट एक्टिविटी। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट से पता चलता है कि एमिनो क्विनोलिन ग्रुप है उसकी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी कौन सी है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द एक्टिविटी ऑफ 9 एमिनो एक्रिडीन ग्रुप। ओके, 9 एमिनो एक्रिडीन में क्या है, यहाँ पे आप देखो कि 9 एमिनो एक्रिडीन ग्रुप C9 पोजीशन जो है वहाँ पे एमिनो ग्रुप लगा होता है, ग्रीन फ्लोरोसेंट। अब देखो फ्लोरोसेंट बेसिकली क्या होता है, कोई कंपाउंड ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट जाएगा, एक्साइटेड स्टेट से वापस वो यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में S1 होता है तो यहाँ पे वो यहाँ से नीचे आएगा और फिर फॉलोड बाय यहाँ से नीचे आएगा, इस कॉल्ड फ्लोरोसेंस। अगर वो दूसरे किसी स्टेट में जाके फिर वापस आता है तो इस कॉल्ड फॉस्फोरेंस। सो ग्रीन फ्लोरोसेंस ये देता है, उसका मतलब ये S0 से S1 में आएगा या S2 में जाएगा एंड देन कम बैक टू द ग्राउंड स्टेट। इट इज ऑल्सो यूज एज एंटीसेप्टिक फॉर अ बाउंड इन्फेक्शन, बाउंड इन्फेक्शन में भी यूज होता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द स्टेसियर एक्टिविटीज बिफोर टू स्टार्ट विद द टेबल। क्विनाक्रीन है इसके अंदर, एमिनो एक्रिचीन है, एक्ट्रिक्वीन है, एजाक्रीन है। देखो यहाँ पे ये फर्स्ट कार्बन जो है वो R8 पोजीशन जो हमारा था वही है ये। यहाँ पे एक चेंज अब देखो कहाँ पे, एक यहाँ पे चेंज है, एक यहाँ पे चेंज है, क्लियर है। बाकी सब आप देखोगे ऑलमोस्ट सेम है और एक यहाँ पे इस वाले में चेंज है। यहाँ पे जो है वो ब्रांच चेन नहीं है, बाकी सब में ब्रांच चेन है, तो सब स्ट्रक्चर रिजेंबलेंस है। देखो क्विनाक्रीन में HCl-OCH3CH है, एमिनो एक्रिचीन या एमिनो ग्रुप अवेलेबल है, एजाक्रीन में N ग्रुप अवेलेबल है और इसमें जो है वो है ब्रांच चेन नहीं है, एक्रिक्वीन बोलते हैं इसको। इसके लिए हम थोड़ी और एक्टिविटी देखेंगे। ये 4 स्ट्रक्चर है। व्हेन साइड चेन 2 एमिनो और 5 डाइइथाइल एमिनो पेंटेन इज इंट्रोड्यूस्ड एट C9 पोजीशन, compound shows antimalarial properties. When methoxy group at C2 position and chlorine at C6 position introduced the antimalarial. C2 पे methoxy है, chlorine C6 पे है, तब तक बहुत ही अच्छा है। Quinacrine, when methoxy group position is shifted to C6, okay, इसको मैं अगर यहाँ पे लेके आ जाऊँ C6 पे और C6 को C2 पे लेके चला जाऊँ तो एंटीमेलर प्रॉपर्टी इसकी लूज हो जाएगी। तो मैं कह सकता हूँ कि 2 और 6 पोजीशन पे जो ग्रुप हमारा है वो एंटीमेलर प्रॉपर्टी के लिए। When methoxy is replaced with ethoxy, toxicity increased. And if it's rotated to another position, 50% toxicity we can decrease. When chlorine is replaced by F, Br and I, compound become successive loss of activity or become inactive. Side chain जो है 2 amino वाली itself has no antimalarial properties. Okay, 2 उसके पास इस side chain alone के पास कोई property नहीं है, but side chain जब इसके साथ लगती है then it shows the antimalarial activity because it pull the electron और electron यहाँ पे पूरे के पूरे circulate होते हैं और ये वाला portion जो होता है वो pocket cavity की वजह से जो एक hypothesis होती है जो हम mode of action में देखेंगे weak base hypothesis, उससे ये जो हमारे लाइसोसोम होते हैं जो पैरासाइट के उसके अंदर एंटर कर पाता है इजीली क्योंकि बेसिक है और पैरासाइट को किल करते हैं। स्पेशली व्हेन अ नाइट्रोजन एटम इज इंट्रोड्यूस्ड C1 पोजीशन, एजाक्रीन हेल्प्स टू इंक्रीज एंटीमैलेरियल प्रॉपर्टीज एंड रैपिड एक्शन ऑन इट। ओके, ये बात है एक। अब जो नेक्स्ट है वो उसमें ये है कि 9 एमिनो एक्रिडीन जो है उसमें 2 पार्ट भी है, जर्मन ने स्पेसिफाई किया था। पहला पार्ट भी क्लोरोक्वीन का पार्ट है, दूसरा पार्ट भी जो इनएक्टिव पार्ट है वो है बेंजीन का पार्ट। ओके, वो इनएक्टिव पार्ट है जिसे मैंने पिंक से दिखा है, ये एक्टिव पार्ट है जो हमने येलो से दिखा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज मोड ऑफ एक्शन। सो इन द मोड ऑफ एक्शन वी हैव डिस्कस्ड 4 एमिनोक्विनोलिन, 8 एमिनोक्विनोलिन एंड पिरिमिडिन। जो मोड ऑफ एक्शन जो है उसके अंदर हम बात करेंगे 4 एमिनोक्विनोलिन, 8 एमिनोक्विनोलिन एंड पिरिमिडिन ड्रग जो है उसके मोड ऑफ एक्शन कैसे होते हैं उसके। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस द मोड ऑफ एक्शन ऑफ 4 एमिनोक्विनोलिन ड्रग। अब देखो 4 एमिनोक्विनोलिन जो ड्रग है हमारी वो हमारे पास ये 4 टाइप की ड्रग फिलहाल तो 4 एमिनोक्विनोलिन केस के अंदर अवेलेबल है जो हमने आगे SAR में देखा। ठीक है, अब ये तो बात थी कि कितने टाइप की ड्रग अवेलेबल है,
बट हमें ये भी देखना होगा साथ साथ कि हमारे पास जो है वो जो हाइपोथेसिस है मोड ऑफ एक्शन की क्या क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की हाइपोथेसिस कौन कौन सी है। पहले तो हम बात करेंगे वी हैव 3 हाइपोथेसिस फॉर दैट वन इज DNA interaction hypothesis, the second one is ferriprotoporphyrin 9 hypothesis and the third one is weak base hypothesis। इन तीन में से कौन सी अच्छी है और कौन सी hypothesis हम यूज कर सकते हैं to show the actual mechanism of action or mode of action of 4-aminoquinoline drug। So let's begin with this one। So अब हम देखेंगे पहली hypothesis जो थी वो है DNA interaction। अब DNA interaction में क्या होता है वो हम देख लेते हैं। The earliest proposal for the mechanism of action for the quinine was that drug intercalated into the DNA of parasite। Okay, earliest ये proposal था पहले कि भाई जो drug है वो DNA के साथ intercalate हो जाती है, किसके DNA के साथ, parasite के DNA के साथ। This mechanism was soon discarded based upon the fact that concentration required for the inhibition of the nucleic acid synthesis is significantly higher than the necessary of the inhibition of Plasmodium parasite। तो क्यों हमने इसको डिस्कार्ड कर दिया? बिकॉज जो कंसंट्रेशन था किसका, इनहिबिशन ऑफ प्लाज्मोडियम पैरासाइट का, वो सिग्निफिकेंट हाई था कंपेयर टू द कंसंट्रेशन ऑफ इनहिबिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस। सो अगर ये है तो हमारी जो हाइपोथेसिस है वो अपने आप नलिफाई हो जाती है एंड वी कैन नॉट। तो ये रीजन था इस हाइपोथेसिस को निगलेक्ट करने के लिए। अब सेकंड वाली हाइपोथेसिस जो है फेरिप्रोटोपोर्फिरिन, वो क्या है ना, वो हम इसको अच्छे से समझते हैं पहले एंड देन आई विल टेल यू अबाउट द मोर डीपर अबाउट दैट वन। अब देखो जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट है वो यूटिलाइज करते हैं होस्ट हीमोग्लोबिन को एज अ सोर्स ऑफ एमिनो एसिड, वो हमें पता है। तो वो कैसे यूटिलाइज करते हैं, तो देखो ये हमारा HB है, ये हमारा हीमोग्लोबिन है, ठीक है। हीमोग्लोबिन जब प्लाज्मोडियम उसको एज अ सोर्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड यूटिलाइज करते हैं उसके मेटाबॉलिज्म के अंदर, तो डाइजेशन होता है और डाइजेशन से हमें हेमिटीन मिलता है। क्या मिलता है? हेमिटीन। इस टर्म को याद रखना, उसका नाम है हेमिटीन। और ये जो हेमिटीन मिलता है उसे ही हम बोलते हैं फेरिप्रोटोपोर, यही है फेरिप्रोटोपोर, उसका एक दूसरा नाम है। सो जो फेरिप्रोटोपोर्फायरिन वी गेट कहाँ से मिला हमें, हमने देखा कि हीमोग्लोबिन जो है जब यूटिलाइज किया पैरासाइट ने सोर्स ऑफ एमिनो एसिड के लिए, देन वी गन हिमिटीन। अब ये हिमिटीन जो है वो हिमिटीन जब प्लाज्मोडियम के मेटाबॉलिज्म में और गया, इसको हम बोलते हैं, यही जो हमारा है फेरिप्रोटोपोर्फायरिन 9, यही है वो FP9। सो ये जो है ना वो जब प्लाज्मोडियम के अंदर गया तब क्या होगा, तब यहाँ से बनेगा हमारा हेमेटोजोइन, ये प्रोड्यूस हेमेटोजोइन। ओके, सो हेमेटोजोइन कैसे बनता है ये हमने देख लिया है पहले भी यहाँ पे ऐसे ही। सो अ कंस्टिट्यूट ऑफ हेमेटोजोइन इज अ केमिकल सब्स्टिट्यूएंट। ओके, उसको बोलते हैं फेरिप्रोटोपोर्फिरिन, ये कंस्टिट्यूट है इसका एक। एंड FP9 इज अ अनबाउंड फॉर्म ऑफ टॉक्सिक टू होस्ट एंड प्लाज्मोडियम शेल इज लिंक्ड टू लाइसिस ऑफ द शेल। तो इससे क्या होगा, शेल लाइसिस हो जाएगा। नॉर्मली FP9 इज बाउंड to endogenous protein in this bound form, this is non toxic। अगर वो endogenous protein के साथ बाउंड कर लेता है तो नॉन टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। The FE9 is bound to the drug, but this complex retain toxicity towards erythrocyte and parasite। So ये both के लिए बहुत dangerous है। And once again the mode of the evidence which argue that the proposed mechanism is not accepted। Because of that ये argue है कि ये mechanism जो है वो accepted नहीं है, हम इसको accept नहीं। So third and last mechanism जो हमारे पास बचता है उस पर भी हम थोड़ा नजर डाल लेते हैं और फिर देखते हैं कि विच वन इज गुड फॉर दैट पर्पस। सो थर्ड है वीक बेस हाइपोथेसिस। और जो वीक बेस हाइपोथेसिस में मैंने जो 4 स्ट्रक्चर डाले हैं वो हम देखते हैं कि कैसे करना है। सो देखते हैं पहले ये जो हमारा RBC है, RBC के अंदर 2 टाइप होते हैं। RBC के यहाँ पे जो बाहर लगा है ना ये वाला, ये जो है तो पैरासाइट। ओके, तो ये समझो कि पैरासाइट का लाइसोसोम है, ये ड्रग यहाँ पे जाएगा और ये बेस पार्ट है जिसकी pH 7.4 होती है और अंदर की साइड की pH 4.5 to 5.2 होती है। अब कैसे करेंगे, वीक बेस हाइपोथेसिस है। और 4 सब्स्टिट्यूटेड क्विनोलिन आर वीक बेस, ठीक है, वो हमें सबको पता है कि 4 सब्स्टिट्यूटेड क्विनोलिन जो होते हैं वो वीक बेस होते हैं बिकॉज द पीके वैल्यू दे आर टफ टू एक्यूमुलेट इन द लोकेशन विच एसिडिक। ओके, पीके वैल्यू कितनी है जो बहुत टफ है एक्यूमुलेशन करना, 4.8 to 5.2 बिकॉज द एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड ऑफ द पैरासाइट इज एट 7.4 एज अ वीक बेस विल मूव टुवर्ड द दैट pH। सो क्या होता है, जो एक्स्ट्रासेल्युलर पार्ट है यहाँ से ये pH अंदर की ओर जाती है, यहाँ से अंदर की, बिकॉज ये क्या है 7.4 है तो 7.4 से ऑब्वियस बेसिक से वो एसिडिक की ओर जाएगी, तो एक्स्ट्रासेल्युलर पार्ट जो लाइसोसोम है वहां पे वो अंदर जाए, विल मूव टुवर्ड्स द मोर एसिडिक pH। ओके, सो वंस इन द लाइसोसोम an acid based reaction occurring elevating the parasite ability to digest hemoglobin and thus reducing the availability of amino acid। क्या होगा जब ये एसिड बेस्ड रिएक्शन अपने आप अंदर स्टार्ट हो जाएगा लाइसोसोम के अंदर, स्टार्ट होते ही डाइजेशन की जो है पॉसिबिलिटी, डाइजेशन कैसे करता है लाइसोसोम के अंदर, वो मैं आपको पीछे दिखाऊंगा बिकॉज वी हैव द वन अनदर स्लाइड्स ओनली डेडिकेटेड टू दैट, हाउ लाइसोसोम कन्वर्ट द फूड पैकेट एंड हाउ इट हेल्प टू गिव अ फूड टू द सेल। सो हीमोग्लोबिन वो डाइजेस्ट करेगा पर एसिड बेस्ड रिएक्शन होते ही वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा और उसकी जो पावर है एमिनो एसिड, जो डाइजेशन के बाद वो एमिनो एसिड जो बनाता है वो डिक्रीज हो जाएगी।
दिस इज द एविडेंस टू सजेस्ट दैट द मूवमेंट ऑफ द वीक बेस टुवर्ड द मोर एसिडिक मीडिया ट्रांसपोर्ट एंजाइम। ओके, ये एंजाइम से वहां पे मूव करेगा मोर एसिडिक मीडिया की ओर, एंड दिस लेटर टू मैकेनिज्म आर नॉट नेसेसरी टू एक्सक्लूसिवली, yet neither of them are entirely। So पहले जो मैकेनिज्म थी ना, there is no need to make it exclusive for that particularly mode of action। So in general believe that the 4-substituted quinolines disrupt the hemoglobin in sensitive organism। Okay, ये बिलीव हो गया है कि 4-aminoquinoline था वो हीमोग्लोबिन जो एक सेंसिटिव ऑर्गेनिज्म है उसको डिस्टर्ब कर देता है जब वो पैरासाइट के साथ मिल जाता है। तो अब हम जो बात करेंगे अपने नेक्स्ट जो है वो एनिमल सेल इलस्ट्रेशन में आपको थोड़ा समझाऊंगा कि ये एनिमल सेल में क्या होता है, इलस्ट्रेशन क्या है उसका और कैसे हम उसको देखते हैं। ओके, सिंपल है वो, बहुत ही सिंपल। देखो ये लाइसोसोम, लाइसोसोम बेसिकली हम क्या बोलते हैं इसको स्टमक बोलते हैं। ओके, स्टमक बोलते हैं पूरे जो सेल है उसको, क्योंकि यही फूड प्रोवाइड करता है। बहुत सारे जो कंटेंट है, जैसे मैं नंबरिंग यहाँ पे दी हूँ, यहाँ पे नंबरिंग नोटेड है, और ये है न्यूक्लियस, थर्ड नंबर पे रिबोसोम है, वेसिकल्स है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, 8 नंबर पे स्मूथ है, 6 नंबर पे गोल्गी का है, पावर हाउस, साइटोस्केलेटन है, फिर माइटोकॉन्ड्रियन है, क्यूल है, साइटोसॉल है, देन अगर फॉलोड बाय हम बात करें तो सेंट्रोसोम है एंड सेल मेम्ब्रेन। ये जो इमेज है गिव अ कर्टसी टू द बाय कैल्विन सॉन्ग ऑन CCO एंड विकिपीडिया। नेक्स्ट वी आर टॉक अबाउट, जो मैंने आपको बताया था उसके बारे में हम बात करेंगे। जो बात थी वो लाइसोसोम फूड डाइजेशन प्रोसेस की। मैं आपको बताया कि लाइसोसोम फूड डाइजेशन कैसे करता है, हम नेक्स्ट कपल ऑफ स्लाइड्स में देखेंगे। अब देखो ये फूड पाउच है, ठीक है, ये फूड पाउच है। अब लाइसोसोम कैसे एक्ट करता है हम देखते हैं। पहले लाइसोसोम डाइजेस्ट द मटेरियल टेकन इनटू द सेल एंड रिसाइकल इंटरसेलुलर मटेरियल। ओके, वो रिसाइकल करके स्टेप 1 शोज मटेरियल एंटरिंग टू द फूड वैक्यूल थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड नोन एज अ एंडोसाइटोसिस। सो एंडोसाइटोसिस हुआ, ये फर्स्ट एंडोसाइटोसिस हुआ, ये एंडोसाइटोसिस यहाँ पे। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन से ये बाहर निकलेगा। फूड जो हमारा फूड वैक्यूल था वो इन 2 स्टेप लाइसोसोम विद एक्टिव हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कम्स टू द पिक्चर एज फूड वैक्यूल मूव अवे फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो क्या करेगा यहाँ पे, तो आ गया पर लाइसोजाइम, जो ये जो एंजाइम है हमारे पास, जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, वो इसको फार अवे ले जाएगा फूड वैक्यूल को। कहाँ से? ये वाली जगह से, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से दूर ले जाएगा। जैसे वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से दूर ले जाएगा, हमारा स्टेप 3 स्टार्ट हो जाएगा। स्टेप 3 के अंदर हम क्या करेंगे, कंसिस्ट ऑफ लाइसोसोम फ्यूजिंग विद द फूड वैक्यूल। देखो यहाँ पे फ्यूज हो रहा है, तो फ्यूजिंग विद द फूड वैक्यूल हो जाएगा, और फ्यूजिंग जैसे ही होगा फूड वैक्यूल के साथ, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो है वो एंटर हो जाएंगे इसके अंदर, फूड वैक्यूल के अंदर। यानी ये जो हमारा जो फूड पाउच है, हम फूड पाउच इसको बोल सकते हैं। ओके, फूड पैकेट बोल सकते हैं। तो ये फूड पैकेट जो है उसके अंदर ये एंटर हो जाएगा। एंटर होने के बाद लास्ट एंड फाइनल स्टेप क्या आता है, देयर स्टेप इज हाइड्रोलाइटिक एंजाइम डाइजेस्ट द फूड एंड फूड पार्टिकल। वो डाइजेस्ट करेगा फूड पार्टिकल को। ये जो एंजाइम है रेड कलर में यहाँ पे शो कर रहा है, वो एंजाइम है, वो डाइजेस्ट कर लेगा उसको, एंड दिस इज डाइजेशन प्रोसेस। अब इसको ही अगर हम बंद कर दे, लाइसोसोम के अंदर प्रोसेस ही हो रहा है, जो अगर हम बंद कर दे क्या होगा, एनी सेल, पैरासाइट सेल डेड हो जाएगा। ओके, सून जैसे प्रोसेस बंद होगा, अमीनो एसिड की सिंथेसिस बंद हो जाएगी और पैरासाइट सेल डेड हो जाएगा। जैसे पैरासाइट सेल डेड हो जाएगा, जो कंसंट्रेशन था पैरासाइट का वो कम हो जाएगा, एंड वी क्योर, और हमारे क्योर हो जाएगी अगेंस्ट द मलेरिया। ये एक चीज थी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, जो मैंने आपको समझाया। बट टेक केयर कि ये बात याद रखो आप, क्योंकि बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो है 8-aminoquinoline के बारे में। सो क्या होगा, अब देखो, अब ये बात है कि 4-aminoquinoline 8-aminoquinoline लिटिल बिट सेम ही है, उसकी सिर्फ पोजीशन चेंज है। तो 8-aminoquinoline में कैसे मोड ऑफ एक्शन एक्ट होता है वो हम देखेंगे। इसकी जो मोड ऑफ एक्शन है लिटिल बिट डिफरेंट देन 4-aminoquinoline। कैसे, लेट वी सी। सो लेट वी जंप इनटू दैट मोड ऑफ एक्शन ऑफ 8-aminoquinoline एनालॉगस। So while the mechanism of action of 8-aminoquinoline is unknown, it is known that the primaquine can generate a reactive oxygen species via auto-oxidation in 8-aminoquinoline group. So देखो, the formation of radical anion at 8-amino है वहाँ पे radical anion, कौन सा, reactive oxygen species का formation होगा, ROS का। ROS formation जो एक्चुअली जब होता है, तो ROS के formation से ही हम किल करवाते हैं सबके सब जो हमारे पैरासाइट है उसको, क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस होता है हमारे सेल के लिए। So क्या होता है, रिजल्ट सेल डिस्ट्रक्शन ऑक्सीडेंट सच एज हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2 बनेगा, सुपर ऑक्साइड बनेगा, O2 माइनस बनेगा, एंड हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, हाइड्रोक्साइल फ्री रेडिकल, ऐसे फ्री रेडिकल भी बन जाता है। सो ये जो रेडिकल जो बनेंगे, जो होगा रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जो बनेंगे ना, वो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जो है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है और वो रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कैसे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जो है वो यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ होता है, कैसे वो बनता है, क्या मैकेनिज्म है, चलो उसको देखते हैं। ये प्रीमाक्विन ड्रग है हमारा। प्रीमाक्विन ड्रग में से जब ऑक्सीडेज जो है वो एंजाइम इसका ऑक्सीडेशन करेगा NH2 का, तो NH2 जो पूरे का पूरा है, अगर मैं इसको AR कंसिडर कर लूँ एज, तो ऑक्सीडेज जो ये NH2 है पूरे का पूरा NO2 में कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे। अब क्या होगा, ये जो NO2 है एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा,
ओके, NADPH से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इलेक्ट्रॉन लेने के बाद यहाँ पे फ्री रेडिकल और नेगेटिव चार्ज दोनों जनरेट कर लेगा। और एज वी नो कि बॉडी में ऑक्सीजन तो होता ही है, सो ऑक्सीजन इस NO2 के साथ इंटरेक्ट करेगा, मेम्ब्रेन के साथ इंटरेक्ट करेगा, इंटरेक्ट करने के बाद सुपर ऑक्साइड बना देगा एंड अगेन द ArNO2 प्लस जो उसको है वो रिलीज कर देगा। सुपर ऑक्साइड एक बार बन गया, अगर सुपर ऑक्साइड हमारे बॉडी में बन गया तो क्या होगा, सुपर ऑक्साइड अगेन इलेक्ट्रॉन लेगा, 2H प्लस लेगा और हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनेगा। ये नेक्स्ट साइकिल यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे बहुत ईजी है समझना। सो ये माइनस एंड फ्री रेडिकल दोनों एक साथ होगा तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन के जाते ही क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज में जनरेट होगा, ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होना चाहिए तो इसके लिए 2H प्लस है इस साइड पे अटैच हो जाएंगे एंड वी गेट अ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, दिस सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द बॉडी सेल। अभी हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है फिर से अगर कोई ऑक्सीजन इसके टच में आया, फिर से इलेक्ट्रॉन के टच में आया तो क्या होगा, वो फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा और ये स्टेबल नहीं है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, आपको पता है। तो ये क्या करेगा, एक यहाँ पे दे देगा और एक यहाँ पे दे देगा, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन तो देते हुए फ्री रेडिकल में बन जाएगा, वहाँ पर हाइड्रोजन रेडिकल आ जाएगा। तो दैट होल स्टफ इज कॉल्ड रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज एंड ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज वाला जो पाथ है वो बहुत डेंजरस है बॉडी के लिए, सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए, दैट इज इनफ। सो 8-अमीनो-क्विनोलिन इस वे से मैकेनिज्म करता है। तो मोड ऑफ एक्शन 8-अमीनो-क्विनोलिन का जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज का प्रिपरेशन है वो बनाने के बाद जो है बॉडी को डिस्टर्ब करता है, इसलिए प्रीमाक्विन सबसे ज्यादा एक्टिव है बिकॉज इट हैज NH2 एंड इज वेरी इजी टू कन्वर्ट NH2 to NO। सो नेक्स्ट वी विल मूव pyrimidine एनालॉगस। pyrimidine एनालॉगस क्या है, पहले pyrimidine क्या है वो देखते हैं। हमने पहले भी देखा था कि pyrimidine जो है वो यहाँ पे जो है वो NH2N नाइट्रोजन ग्रुप प्रेजेंट होता है बेंजीन में, इट्स कॉल्ड pyrimidine। ओके, यहाँ पे है एनालॉगस है pyrimidine एनालॉगस। ओके, अब हम बात करेंगे कि pyrimidine एनालॉगस जो था हमारे पास, जो है हमारे पास, उसका रोल क्या है। सो हम बात करेंगे सल्फोडोक्सामाइन और पायरामिथामाइन की, दोनों की कॉम्बिनेशन कैसे होगी, दैट वी विल टॉक अबाउट दैट। देयर इज द स्ट्रक्चर ऑफ पायरामिथामाइन, देयर इज स्ट्रक्चर ऑफ सल्फोडोक्सामाइन। ओके, दो अपने हिसाब से अलग अलग काम करते हैं, देखते हैं क्या करते हैं। सल्फोडोक्सामाइन और सल्फोनामाइड इंटरफेयर विद द पैरासाइट एबिलिटी टू सिंथेसिस ऑफ फॉलिक एसिड। इसका टास्क क्या है, इंटरफेयर करना। किसको इंटरफेयर करना है, इंटरफेयर करेगा पैरासाइट जो है उसकी फॉलिक एसिड सिंथेसिस को ये इंटरफेयर करेगा। ओके, अब दूसरा जो ड्रग हमने यूज किया है वो पायरामिथामाइन इज अ pyrimidine क्लास ऑफ ड्रग व्हिच इनहिबिट्स द रिडक्शन ऑफ फॉलिक एसिड टू इट्स एक्टिव डाइहाइड्रोफोलेट कोएंजाइम। जो फैंसिडर बनता है, इसको हम फैंसिडर कहते हैं, जो फैंसिडर बनता है उसकी कन्वर्जन को ये बनता है। तो सपोज अगर पहले सल्फोडोक्सामाइन से छूट भी गया हो पैरासाइट और फॉलिक एसिड की सिंथेसिस हो भी गई हो, बट एट द कॉन्टैक्ट विद पायरामिथामाइन वो जो है कंप्लीट स्टॉप कर देगा कोएंजाइम फॉर्मेशन को। और कोएंजाइम फॉर्मेशन के ब्लॉक होते ही एक चीज ये आएगी, जैसे ही कोएंजाइम फॉर्मेशन ब्लॉक हो गया उसको फूड नहीं मिलेगा, इफ फूड नहीं मिलेगा तो अब देखते हैं आगे क्या हो कि सल्फोनामाइड ब्लॉक द इनकॉर्पोरेशन ऑफ पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड टू फॉर्म डाइहाइड्रोपेट्रोइक एसिड। सो पैरा एमिनो एसिड से डाइहाइड्रोपेट्रोइक एसिड बनने वाला जो एक टर्म है सल्फोनामाइड, उसको ब्लॉक कर देता है। क्योंकि ये हमें जो बात की वो पूरी की पूरी ये सल्फा ड्रग थी, उसके ही सल्फोन्स जो है उस पे ही ये है, क्योंकि सल्फोन है काइंड ऑफ, आपको पता है दिस इज सल्फोन। नॉर्मली सल्फोनामाइड exhibits excellent selectivity and toxicity because human do not synthesize the vitamins and folic acid. So pyrimethamine inhibits the reduction of folic acid and dihydrofolic acid to the active tetrahydrofolate coenzyme. pyrimethamine क्या करेगा, ये जो लास्ट वाला स्टेप है ना उसको ये नहीं होने देगा। अगर टेट्राहाइड्रोफोलिक कोएंजाइम ही फॉर्म नहीं हुआ तो फिर कैसे कोई सिंथेसिस प्रोसेस होगा। सो विल डायरेक्टली किल द एंजाइम, विल डायरेक्टली स्टॉप द प्रिपरेशन ऑफ एंजाइम एंड जस्ट गेट रिड फ्रॉम द मलेरिया। ये pyrimidine एनालॉगस जो होती है उसकी ये एक ग्लिम्स थी। अब जो है हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे, वहां पे देखेंगे कि हाउ दिस होल द स्कीम इज वर्किंग। तो देखिए क्या है इस स्लाइड में। सो यहाँ पे पूरी की पूरी हमें जो है वो मैकेनिज्म पाथ समझाया हुआ है। देखो ये वाला है पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड, ठीक है। पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड को सल्फोनामाइड से मिलके इस प्रोसेस को वो स्टॉप करना चाहता है ताकि ये प्रोसेस ना हो और ग्लूटामेट ना लगे और डाइहाइड्रोफोलिक एसिड ना बने, जो आगे डाइहाइड्रोफोलिक रिडक्टेज का यूज़ करने के बाद टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड बनता है जो डाइजेशन में यूज़ होता है। अब यहाँ पे अगर सपोज समहाउ बन जाता है सपोज, तो बन गया, उसके बाद क्या होगा, ग्लूटामेट के साथ डाइहाइड्रोफोलिक एसिड बनेगा। डाइहाइड्रोफोलिक एसिड के बनते ही यहाँ पे जो साइट ऑफ पायरामिथामाइन है वो एक्टिवेट हो जाएगी और एक्टिवेट होते ही डाइहाइड्रोफोलिक रिडक्टेज जो है उसके वर्क स्टॉप हो जाएगा और यहाँ पे टेट्राहाइड्रो नहीं बनेगी। इससे डाइहाइड्रो कैसे हुआ, एक पोजीशन पे यहाँ पे दो जगह पे आप देख रहे हो, ये डाइहाइड्रोफोलिक एसिड की सिंथेसिस बन चुकी है और यहाँ पे एक और यहाँ पे और एक यहाँ पे, यानी कि टेट्राहाइड्रोजन है, सो इट्स कॉल्ड टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड। सो टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड की सिंथेसिस भी है। अब जो है हम जरा सा ये भी देख लेते हैं कि ड्रग का कौन कौन से पार्ट पे कौन कौन से ड्रग इफेक्ट करती है। देखो ये हमारा सेल है, सेल के अंदर जो
जो पैरासाइट का सेल है उसके अंदर कौन कौन से पार्ट है, क्या क्या प्रोसेस होती है, ये देखते हैं हम। ये डाइजेस्टिव वॉक्यूल है जहाँ पे क्लोरोक्वीन, एमिडोक्वीन, क्विनिन, मेफ्लोक्वीन यूज़ होता है। ये जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में पावर हाउस बोलते हैं, वहाँ पे एटोवाक्वीन को यूज़ कर सकते हैं हम। ये जो है वो एपिकोप्लास्ट है, वहाँ पे एजिथ्रोमाइसिन, डिऑक्साइक्लिन एंड क्लिंट्रामाइसिन का यूज़ कर सकते हैं हम। और ये जो पूरे का पूरा साइटोसॉल है, जो जेल है, उसके अंदर हम पायरेमिथामाइन, सल्फोडाक्सामाइन, प्रोक्विनलिन एंड क्लोरोक्विन डेप्सोन की जो है वो कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं। सो दिस ओवरऑल विच ड्रग इज यूज एट विच पोजीशन, कहाँ पे कौन सी ड्रग यूज होगी, कौन से पार्ट को हम किल करेंगे, देन विल गेट rid of the malaria. So here we will see 4-aminoquinoline drug. The 4-aminoquinoline drug in which we are discuss the synthesis of chloroquine. The chloroquine is widely used for the treatment and inhibition of malaria. It has been found to consume a quick resolving cycle effect and seems to be effect on the cell growth by interfering with DNA. The activity of chloroquine is depending upon the preferential accumulation in the infected erythrocyte. Generally, it has no effect on the malarial parasite in human liver cell, but it kills the erythrocytic forms of all malaria parasite at all stages of development. So, chloroquine has been used as complete cure treatment in malaria caused by P. falciparum, but it fails to check the relapse caused by secondary exoerythrocytic phase of P. malaria, P. oval and P. vivax. ये सब फाल्सिफेरम मलेरिया जो है उसके ट्रीटमेंट के लिए कंप्लीट क्योर देता है, बट अगर रेप्लेस कॉज हुआ है, सेकेंडरी एक्सोइरिथ्रोसाइटिक फॉर्म कॉज हुआ है, फेज कॉज हुआ है इन तीनों की वजह से, तो फिर ये इफेक्ट नहीं देता है। जो आयुपेक नेम है वो है N4 7 क्लोरोक्वीन ऑलिन 4 वायल N1 डाई इथाइल पेंटेन 1 4 डायमीन। क्लास से जो बिलोंग करता है क्लोरोक्वीन वो मैंने आगे ऊपर लिख दिया है, 4-aminoquinoline क्लास से बिलोंग करता है। ड्रग डोजिस जो है वो सप्रेसिव केस है तो 500 मिलीग्राम वंस पर वीक है थेरापेटिकली। इनिशियली 1 ग्राम है, फॉलोड बाय 500 मिलीग्राम इन 6 आवर्स एंड 500 मिलीग्राम इन सेकंड एंड थर्ड डे। मेटाबॉलिक स्टेप के अंदर क्या है, इसमें मेटाबॉलिक स्टेप जो है उसके अंदर एन डी अल्कलाइलेशन थ्रू CYP2D6 एंड CYP3A4 आइसो एंजाइम के साथ होता है इसका। इट हैज़ बीन रिपोर्टेड दैट द लेवल ऑफ मेटाबॉलिज्म कोरिलेट क्लोजली विद द डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस। So now the synthesis has been divided into the 4 steps. The step 1 is preparation of nucleus, which is core step of the any kind of synthesis. Second step is preparation of side chain. Third step is condensation between the nucleus and side chain. The fourth step is preparation of phosphate salt, which is water soluble and is easily to intake as a tablet form, which is go to the stomach and separate out the chloroquine. So without wasting time, let's jump the preparation of nucleus. It means 4,7-dichloroquinoline. So how we can get? So 1 mole of 3-chloroaniline when react with the formic acid, after removal of water molecule, we get N3-chlorophenyl formamide. We can get a derivative of chlorophenyl. So that derivative further react with another mole of 3-chloroaniline and removal of another 1 molecule of water, and we will get the imide derivative number 3. That imide derivative react with diethyl malonate. How it's react? Let's see simple. There is a process called inductive effect goes there, and here it generate a charge with attack over here, and this group is left, and we will get this kind of product. It is called malonate derivative. The malonate derivative has been cyclized and removal of C2H5OH. How it's cyclized? Let's see here first. From here, the lone pair. Suppose if we look like that, so that the double bond pair is directly attacked towards here and this bond is removed. So what we get? We get C2H5OH removal and we get this product which is 7-chloro-4-hydroxyquinoline 3-carboxylate. When we add water into that, the carboxylate moiety, we have to get C2H5OH from here and removal of CO2 molecule again. So C2H5OH and O again here, and we can get removal of CO2 and C2H5OH. We get 7-chloroquine for all. After the using the POCl3 and SOCl2, OH convert into the Cl and we get our desired product 4,7-dichloroquinoline. That 4,7-dichloroquinoline we can put it back for the step 3. Now we will jump to the step 2. The step 2, we use oxidine and diethylamine. The bond is very labile of the oxidine and diethylamine. The presence of methanol, we will get 2-diethylaminoethanevanol. It means ethanol. This is ethanol, methanethanol. 2-diethylethanol. In the presence of SO2, SOCl2, the OH converted into the Cl and we get
2-chloro-NN diethyl ethane 1-amine, which react with ethyl 3-oxobutanoate in the presence of C2H5ONA. Removal of HCl is occur, and we get this kind of moiety, which is intermediate. That intermediate phase of hydrolysis in the presence of KOH and removal of again C2H5OH and CO2. So here from whole the group is just removed, and we get COOCH3. That COOCH3 first followed by H2Ni, and then using the ammonia we will get our N1-diphenylpentane 1,4-diamine compound, which is our side chain. When we mix together this condensation process, so HCl is removed from here. In that manner we will get our compound. This compound when treated with 2 moles of H3PO3 or 2 moles of H2SO4, so we can get sulfate as well as the phosphate salt. That salt is useful. The use and the property is chloroquine exists is a white powder, almost white crystalline powder, soluble in water and methanol both, slightly soluble in ethanol. Antimalarial property it has antihistamine as well as anti-inflammatory properties. It is used to treat hepatic embiosis, rheumatoid arthritis, discoid lupus erythematosus, cutaneous TARD, solar urticaria, and polymorphin light eruptions. Chloroquine and 4-aminoquinoline are not effective against exoerythrocytic parasite. It is an example of poor selective toxicity. Okay. So adverse reaction include retinopathy, hemolysis in the patient with glucose 6-phosphate dehydrogenase deficiency. Same mutation that confirms resistance against the malaria. So muscular weakness, exacerbation of prosophosis and porphyria, impaired liver function. So that is the something which adverse effect, that is the effect, toxicity to words, and that is use. Chloroquine. So next we will switch to the 8-aminoquinoline drug, and which is Primaquine. It is antimalarial drug, specially kills the primary cell of exoerythrocytic stage at all, and secondary exoerythrocytic form of all except the P. falciparum. So it is not affected towards the P. falciparum, but rest of all it's affected. But actually P. falciparum has a no secondary form. So IUPAC name as mentioned here, it is 6-methoxyquinoline 8-yl-pentane 1,4-diamine. Class is, I talked to you before, dose 70.5 gram to 26.3 milligram once day for 14 days. So here there is some important role. So we will discuss from here. Here if I made it AR, so what happened here? AR and NHH. So here there is CH2 and NH2. So there is convert into two form. One is AR C double bond OOH, and another is N-acetyl form. So and how it got N-acetyl form? AR N H C double bond O anon. It is N-acetyl form, and that is carboxylate form or carboxy form. So both form are available. Aromatic hydroxylate product and conjugation metabolics are seen, but it's metabolized by CYP3A4. Okay, primary metabolite. So ये metabolite जिससे होता है वो है CYP3A4. नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कितने स्टेप है. तो इसके अंदर हमने देखा पहले से, इसमें भी 4 स्टेप है. दैट इज कोर स्टेप इज दिस वन, द सेकंड इज साइड चेन प्रिपरेशन, थर्ड वन इज कंडेंसेशन एंड फोर्थ वन इज प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फेट सॉल्ट. पहले में क्या होगा, जो एनिसॉल है उसका नाइट्रेशन होते ही NO2 आएगा, नाइट्रेशन होते ही NO2 जो है उसका रिडक्शन होकर NH2 हो जाएगा, उसके बाद एसाइलेशन होगा तो NH2 कन्वर्ट टू NHCOCH3, अगेन नाइट्रेशन होगा तो एसाइलेटेड प्रोडक्ट जो है उसके ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप कन्फर्म लग जाएगा. जब हाइड्रोलिसिस होगा तो ये वाला फंक्शनल ग्रुप टूट के NH2 में कन्वर्ट होगा. अब हाइड्रोलिसिस वाला हम स्क्रब सिंथेसिस करेंगे ग्लिसरॉल के साथ. तो स्क्रब सिंथेसिस करेंगे तो हमें ये प्रोडक्ट जो यहाँ से जो पूरा है वो हमें साइक्लाइज फॉर्म मिल जाएगा. साइक्लाइज फॉर्म को हम रिडक्शन के थ्रू SnHCl के साथ में NH2 यहाँ पे एमाइन जो है नाइट्रो से एमाइन वी गॉट. सो हमारा बन जाएगा 6-methoxyquinoline 8-amine. स्टेप 2 जो है हमारा प्रिपेयर करना है साइड चेन. साइड चेन बहुत ही ईजी है इस केस में. हमें लेना है 1,4-dibromopentane और हमें लेना है पोटेशियम थैलेमाइड. इसको पोटेशियम थैलेमाइड बोलते हैं शॉर्ट में, ये जो पूरा नाम है उसको हम थैलेमाइड बोलेंगे. ओके, KBr रिलीज होगा इन दोनों पे यहाँ से और हमें ये ग्रुप मिलेगा. देखो यहाँ पे भी एक Br है. सो इट शोज कि ये साइड चेन और जो हमारा जो कंपाउंड मेन है उसके बीच में इंट्रैक्शन होगा, कंडेंसेशन होगा.
कंडीशनल प्रोसेस में ये जो NH2 है इसके साथ ये Br लग जाएगा, साइड चेन तो हमारे पास पहले था, HBr रिमूव हो जाएगा, बट यहाँ पे ये प्रोटेक्शन फॉर्म जो लगा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ थैलेमाइड, वो थैलेमाइड को जब हम हाइड्रोजन हाइड्रेट से यहाँ पे रिएक्शन करवाएंगे तो ये फॉर्म यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे थैलिक एसिड बन जाएगा और NH2 हमें वापस मिल जाएगा. सो दैट इज आवर प्रिमाक्विन ड्रग. दैट्स हाउ वी सिंथेसाइज द प्रिमाक्विन ड्रग. अगर फर्दर सिंथेसिस इसकी करनी है तो हम इससे यहाँ से भी कर सकते हैं. नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा वो इसकी रिएक्शन में H3PO4 हटवा देंगे ताकि वी गॉट अ प्रिमाक्विन फॉस्फेट सॉल्ट एंड दैट इज यूजफुल ड्रग एज वेल. उसके यूसेज एंड प्रॉपर्टी क्या है प्रिमाक्विन की हम देख लेते हैं. प्रिमाक्विन इज क्रिस्टलाइन पाउडर soluble in water, partially soluble in alcohol. In vitro and in vivo studies indicate that stereochemistry at the asymmetric carbon is not important for antimalarial activity. So asymmetric carbon की जो stereochemistry है वो antimalarial में कोई किसी भी प्रकार का रोल प्ले नहीं करती है. This appears to be less toxic with levorotatory isomer, but this is dose dependent and may not be of such importance as dose used to treat exoerythrocytic form of P-vivax malaria. तो अगर हम इसको P-vivax malaria के साथ यूज़ करते हैं तो जो exoerythrocytic फॉर्म जो है P-vivax malaria का वो डोज डिपेंडेंट पहले था, बट इट इज नॉट मच मोर इम्पोर्टेंस टू ट्रीट दिस काइंड ऑफ P-vivax malaria. Next we will switch to the new antimalarial drug. In that the Mefloquine is key role. So see what happened here. The outcome of many years of research in US Department of Army, it belonged to 4-quinoline methanol series, several of which were found to be potent squizondical activities but could not use clinically because they have possessed photosensitization activity in man or in human. Mefloquine is devoid of this effect. It is very effective against the erythrocytic form of malaria. However, it is used restricted to case of chloroquine resistance. Okay, तो ये वाली बात याद रखना कि chloroquine resistance जब भी हो तो हमें Mefloquine का यूज़ नहीं करना है. In the case of falciparum, order to prevent the emergency of parasite that resist to it. IUPAC नेम यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, यू कैन सी द IUPAC नेम. ये न्यूमरल क्लास में बिलोंग करता है. इसका डोजेज 70.5 से 26.3 मिलीग्राम पर है. 14 डेज तक हमें इसका डोज देना है ऑनली डेली बेसिस पे. अब यहाँ पे भी वही है कि मेटाबोलाइट जो है वो CYP3A4 जो है उससे ऑक्सीडेशन होता है एंड मेजर इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स कॉल्ड कार्बोक्सी मेफ्लोक्विन एंड रेस्ट ऑफ अमाउंट इज एक्सक्रिएटेड अनएक्सचेंज इन यूरिन. सो ये जो कार्बोक्सी मेफ्लोक्विन है वो बनता है और बाकी के रेस्ट ऑफ अमाउंट है वो एक्सक्रीट हो जाती है यूरिन से बाहर. तो ये मेटाबॉलिज्म पाथ है, यहाँ से ये बनता है. क्या यूज़ किससे हेल्प के बनता है CYP3A4 की हेल्प से ये बन जाता है. ठीक है, ऑक्सीडेशन का है जो एक कंपाउंड है, एक नाम है, उससे ही बनता है. सिंथेसिस की भी बात करें तो हमें लेना है ट्राइफ्लोरोमिथाइल एनिलीन. उसकी रिएक्शन हमें करवानी इथाइल टाइफ्लोराइड से पॉलीफॉस्फोरिक एसिड की प्रेजेंस में. तो ये रिएक्शन की स्कीम जो है वो कुछ इस हिसाब से हमें CF3 और COOH यहाँ पे मिल जाएगा, COO मिल जाएगा. POBr3 के प्रेजेंस में हम जब 140 डिग्री पे इसको हीट देंगे तो CO रिप्लेस बाय Br. ओके, अगेन ब्यूटाइल लिथियम, तो यहाँ पे Br की जगह Li आ जाएगा. अगेन CO2, Li की जगह पे COOH आ जाएगा. पिल्ला लिथियम करेंगे, COOH से पिरिडीन ग्रुप लग जाएगा. एंड अगेन फाइनली H2PTO2 रिडक्शन जब हम करेंगे इसका तो ये सारे के सारे हाइड्रोजन निकल जाएंगे यहाँ से एंड वी विल गेट आवर मेफ्लोक्विन कंपाउंड. सो सिंपल. प्रॉपर्टीज की बहुत ही सिंपल है. मेफ्लोक्विन हाइड्रोक्लाइड इज व्हाइट एंड स्लाइटली येलोइश क्रिस्टलाइन पाउडर, वेरी स्लाइटली soluble in water, soluble in methanol and alcohol, and is used as an antimalarial agent. वो हमें पता है because it's last. नेक्स्ट जो है हमारे ड्रग है, से पहले जो लेप्रोसी के ड्रग है हमारे, तो उससे पहले हम लेप्रोसी क्या है वो एक बार देख लेते हैं. तो लेप्रोसी इज अ क्रोनिक डिसीज कॉज्ड ड्यू टू द एसिड fast bacillus called Mycobacterium leprae produce a nodule on the skin, causes loss of sensation. Once the organism enters into the body, it multiples and produces an antigen antibody reaction and causes cell mediated immunity and produce allergic reactions by metabolite of the microorganism and finally produce the leprae reaction. और लेप्रोसी की कैटेगरी क्या है? ट्यूबरक्युलोइड लेप्रोसी. It characterized by skin molecule with clear center and well-defined margin. Then lepromatous leprosy, large number of organisms that are present in the affect area and induce lepra reaction. Intermediate leprosy, in localized hypopigmentation with some sensory loss. And the last one is borderline leprosy. It is intermediate stage between the tuberculoid leprosy and lepromatous leprosy. So that is between these two stage. ये जो लास्ट वाला बॉर्डरलाइन स्टेज है वो. क्लासिफिकेशन जो ड्रग की है वो एंटी लेप्रोइक ड्रग सल्फोन,
एक है, दूसरा है बेंजपिरिमिजिन डेरिवेटिव यानी कि क्लोफेजमिन एंड द प्लांट ड्रग। ये 3 हम यूज़ करते हैं इसकी क्योर के लिए। सो इसमें से एक सल्फोन है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। सल्फोन में डेप्सोन है, आपको पता है, सिंथेसिस हमें करना है डेप्सोन का। डेप्सोन का आयुपेक नेम 4,4-सल्फोनाइल डायलिलीन है। इसका डोज जो है एज टैबलेट 25 मिलीग्राम टू 100 मिलीग्राम होता है फॉर एडल्ट। द डोज कंज्यूम 50 मिलीग्राम पर डे ओरली। फॉर लेप्रोमेटियस लेप्रोसी 100 मिलीग्राम डेप्सोन प्लस 600 मिलीग्राम रिफाम्पिन और क्लोफिजामाइन 100 milligram daily at least 2 years, followed by the Dapsone monotherapy. For borderline tuberculosis disease, it is 100 milligram daily and rifampicin 600 milligram once monthly for 6 months. अब इसकी मेटाबॉलिज्म में जरा हम इसको समझते हैं। The major metabolic product of Dapsone result from the N-acetylation in the liver by N-acetyl transferase. It undergoes the N-hydroxylation to hydroxyamyl derivative. This metabolic reaction is catalyzed by CYP3A4 isomers. Neither of these compounds possess significant leprostatic activity, although the N-acetyl amino diphenyl sulfone may be deacylated back to the Dapsone. Product found in the urine consists of small amount of Dapsone and metabolites, that is N-acetyl diamino diphenyl sulfone and N-hydroxyl diamino diphenyl sulfone, as well as the glucuronide and sulfate of each of the substrate. N-acetyl diamino phenyl sulfone है और N-hydroxyl diamino phenyl sulfone है। जब इसका ग्लूकुरोनाइड्स कंजुगेशन होगा तो हमें ग्लूकुरोनाइड मेटाबोलाइट्स मिलेंगे और सल्फेट कंजुगेशन होगा तो सल्फेट मेटाबोलाइट मिलेंगे। हम इसमें यूज़ किसका करेंगे? हम इसमें यूज़ करेंगे जो कैटालाइज किससे होगा? कैटालाइज ये होगा CYP3A4 से, आइसोमर से कैटालाइज होगा। अब नेक्स्ट इसकी सिंथेसिस है डेप्सोन। ये पहला रूट ये है कि आप 2 मोल ऑफ 1-chloro-4-nitroबेंजीन ले लो, Na2S से उसकी रिएक्शन करवा दो, वी गेट 20-4-nitrosल्फेन, ऑक्सीडेशन करवा दो उसका क्रोमिक से, सो हमें मिलेगा SO2 यहाँ पे बीच में, एंड SnCl2 HCl से रिडक्शन करवा दो तो Na2 कन्वर्टेड टू H2 और वी गेट आवर प्रोडक्ट डेप्सोन। नेक्स्ट रूट में ऐसा होगा कि हम सोडियम 4 एसिटामिडो बेंजीन सल्फाइनिलेट ले लें और सल्फिनेट ले लें, उसके रिएक्शन 1 मोल ऑफ 1-chloro-4-nitroबेंजीन से करवा दें, हमें मिल जाएगा ये कंपाउंड। जो वहाँ पे इतना ही डिफरेंस होगा कि यहाँ पे NH2 था, ये वाला NH2 था, नहीं था, यहाँ पे ये है, तो ये वाला ग्रुप जो पूरा है उसके SnCl2 HCl से रिएक्शन करवाते हैं, वी कैन डेप्सोन प्रोडक्ट। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे थोड़ी सी उसकी प्रॉपर्टी एंड यूजेस की। सो डेप्सोन इज अ वाइट स्लाइट येलोइश वाइट क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट, very slightly soluble in water, soluble in acetone, dilute mineral acid, but springly soluble in alcohol. Folic acid synthesis inhibitor used in the both lepromatous and tuberculoid leprosy. कॉम्बिनेशन ये है जो मैंने आगे बात की थी आपको कि भाई डेप्सोन प्लस जो है रिफाम्पिन, डेप्सोन प्लस क्लोफिजमिन, डेप्सोन प्लस पायरामिथामिन एंड डेप्सोन प्लस ट्राइमिथोप्राइम। सो एमएलए केस में हम इसको यूज़ करते हैं। ये कुछ सजेस्टेड रीडिंग है आपके लिए, आप चाहो तो इन बुक्स को पढ़ सकते हो, दैट इज़ वेरी गुड इटसेल्फ। ये बुक पढ़नी चाहिए, इट इज़ वेरी गुड। आई विल टेक अ कंटेंट सम कंटेंट फ्रॉम दिस बुक एज वेल। ये रेफरेंसेस है, ये रेफरेंस ऐसे है जहाँ से रिपोर्ट्स और ये सब मिलते हैं, जहाँ से बहुत सारे अच्छे आर्टिकल्स हैं। सो इफ़ यू विश यू कैन रीड द रेफरेंस एज वेल। एंड एट द एंड, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज शेयर द वीडियो as you can, because another students get a help from that video. And please do not forget to subscribe the channel and press the bell icon so you can get notification soon that kind of important video which is useful to you in your education.